अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, for those of you taking the class online, आपसे कुछ चीज़ें मैंने पूछी हैं, तो आप पहले उनका आंसर कर दिएगा प्लीज, either privately or there on the group chat. अच्छा बेटा, for the rest of you and for basically all of you, if you plan on taking the IBIS test for round one, so the test for the BBA and the BS programs, as in the BS Accounting and Finance, BS Social Sciences, BS Economics, will be held on 18th of February this time around. And the test beta largely comprises of two parts: English and maths. There's no essay, there's no IQ portion, there's no GK. So it's only English and maths only beta. They're on IBIS test. So regardless of the fact that whichever program you're applying to, there's only going to be English and maths in the test. इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें GK नहीं होती, इसमें IQ नहीं होता बेटा. Historically बेटा, IBA के test के अंदर we have 45 to 50 questions in the English portion, and the time duration that we have for that varies between 60 to 65 minutes. For the maths portion, beta, we have 45 to 50 questions, and the time duration for that varies between 70 to 80 minutes, beta. ऐसे जो है वो सिर्फ एक MBA की टेस्ट में होता है, but since all of you are applying for the undergrad program, so this part does not apply to you. Are we clear, beta? So if you feel like copying this, beta, तो आप copy कर लें, फिर हम आगे चलते हैं. But once again, our test will be held on 18th of February. The forms will be made available on 1st of January. And it's advisable that you guys fill your form by 31st of January, not before it, not after it. So ideally, you should be filling the forms between 31st of Jan and 7th of Feb or 10th of Feb. You should not delay it, and you should not really fill it after 10th Feb, because at times where there would be more rush in the banks, and you should not really fill it before 31st of January, because at times what really happens is the students who tend to fill the form at the start, they have their interviews at the start as well. So let's just say if you qualify for the interview for some reason, beta, so you'll be having your interview at the start. So and that is why I tend to advise that you should be filling your form somewhere around 31st of January, beta. So beta, the next thing we must know is that how exactly the grading works for IBA. So beta, for those of you who are not familiar with the grading, so let's just say if there are 10 MCQs, and let's just say if you get 7 of them right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So for every question that you get right, beta, you get 4 points for that. So 7 times 4 would be 28. And for every question that you get wrong, beta, there's no negative marking for that. The IBA test may, once upon a time there used to be negative marking, but there's no negative marking in IBS test anymore. So for every question beta that you get right, you get 4 points for that. And for every question that you get wrong beta, there is no negative marking for that anymore. So your net score will then be 28. Are we clear beta? अब for example, आपके 10 में से 8 questions correct हो जाते हैं. So 8 times 4 is 32. जो इनकरेक्ट है उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, पहले होती थी अब नहीं. आर वी क्लियर? बेटा कॉपी करना है, आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं.
अच्छा बेटा, the next thing you must know is how exactly the grading works for IB. Grading में क्या होता है, सॉरी, कट ऑफ में क्या होता है, माय बैड. कट ऑफ का बेसिकली मतलब होता है पासिंग मार्क्स. सो लेट्स जस्ट से बेटा, इफ यू गेट फॉर एग्जांपल द आईबी सेज दैट कट ऑफ का मतलब है पासिंग मार्क. और कट ऑफ जो है वो डिसाइडेड नहीं होता है या प्री डिसाइडेड नहीं होता है. इट्स डिसाइडेड वंस योर रिजल्ट इज आउट. सो यू गेट टू नो अबाउट द कट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर पेपर ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट. एक पेपर का एक ही कट ऑफ होता है एक प्रोग्राम का. फॉर एग्जांपल बीबी का एक कट ऑफ होगा, सोशल साइंसेस का एक कट ऑफ होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक कट ऑफ होता है, हर प्रोग्राम का एक कट ऑफ होता है. सो लेट्स जस्ट से आईबीए आपको कह देता है फॉर एग्जांपल कि यू नीड 60 मार्क्स इन इंग्लिश, 90 इन मैथ्स, your total for both these sections should at least be 205. Now just in case if you're wondering कि सर यहाँ पे 150 क्यों नहीं लिखा दोनों का टोटल, तो आईबी कहता है कि आपका जो टोटल मार्क्स हैं या आपके टोटल मार्क्स जो हैं या जो आपका टोटल कट ऑफ है, that should be greater than the sum of the individual sections. Now, what does that basically mean? It basically means that you need at least 60 in English in order to clear the test. You need 90 in maths in order to clear the test, beta. And your total cutoff at least should be 205. As in one of these sections, beta, you'll have to perform better. So ideally आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ बेडली पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपका टोटल कट ऑफ मीट नहीं होगा एंड देयर बाय यू विल एंड अप फेलिंग द टेस्ट और आपका टेस्ट फेल हो जाएगा बेटा. अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हम देख लेते हैं कि किस तरीके से टेस्ट क्लियर होता है इजीली. अब एक बच्चा है, आईबी कह रहा है कि 60 मार्क्स चाहिए थे इंग्लिश में, उसका 80 आ गए तो उसका मैथ्स, उसका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो जाएगा. या 90 चाहिए थे मैथ्स में, उसके 100 आ गए तो मैथ्स भी उसका क्लियर हो जाएगा. बट दिस पर्सन विल बी फेलिंग आईबीएस टेस्ट because he would not be able to meet the total cutoff. बेटा, are we clear? समझ आ रहा है आपको बेटा? तो अब this person apparently is failing the test by 25 marks. Let's see another example. अब ये एक बच्चा है, आईबी ने कहा था कि 60 चाहिए, उसके 100 आ गए, क्लियर हो गया. आईबी ने बोला था 90 चाहिए मैथ्स में, उसके 100 आ गए. But again, this person is failing the test by 5 marks because he failed to meet the total cutoff by 5 marks. Are we clear बेटा? फिर नेक्स्ट, अच्छा अब होगा किस किस्म के बच्चे का? अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से इफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश एंड यू ended up getting 140 marks even though only 60 marks were required, but you ended up getting 140. In maths you ended up getting 80, 90 were required and you ended up getting a total of 220 even though 205 was required. क्या अब आपका टेस्ट क्लियर होगा? जी नहीं, आपका मैथ्स का टेस्ट या मैथ्स का पोर्शन फेल हो गया है. तो ऐसे भी इस वजह से भी अब आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा. तो प्लीज नोटिस दैट योर वेरी गुड परफॉर्मेंस इन वन सेक्शन कांट मेक अप फॉर योर एवरेज परफॉर्मेंस इन द अदर सेक्शन. आर वी क्लियर? सो आपकी इंग्लिश की परफॉर्मेंस यहाँ पे मार्क्स कॉम्पनसेट नहीं करेगी. मैथ्स में फिर भी 90 ही चाहिए आपको, इंग्लिश में चाहे आपके फुल मार्क्स आ जाए. आर वी क्लियर बेटा? लाइक वैसे अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, 90 चाहिए थे आपके 160 आ गए, इंग्लिश में 60 चाहिए थे आपके 52 आ गए, टोटल 205 चाहिए था आपका 212 आ गया. तो टोटल भी आपका क्लियर हो गया, मैथ्स भी आपका क्लियर हो गया, बट आपका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर नहीं हुआ, इंग्लिश का सेक्शन आपका फेल हो गया 8 पॉइंट्स से. आर वी क्लियर? So once again, your very good performance in one section, but won't be able to make up for your average performance in the other section. तो किस किस्म के बच्चे का यूजुअली टेस्ट क्लियर हो रहा होता है? Someone बेटा who's clearing all 3 cutoffs, जिसका इंग्लिश भी क्लियर हो रहा हो, जिसका मैथ्स भी क्लियर हो रहा हो, जिसका टोटल भी क्लियर हो रहा हो. अब इस बच्चे के लिए भी अगर आप चेक करें तो उसके भी तीनों कट ऑफ क्लियर हो रहे. For as long as you're meeting all 3 cutoffs बेटा, you'll be clearing the best paper बेटा. अब फिर इसके बाद भी 2 किस्म के एडमिशंस हैं हमारे पास, अभी हम उस पर आते हैं. बट ये एक चीज थी कट ऑफ का बेसिकली मतलब होता है पासिंग मार्क्स. अब कुछ कट ऑफ की और बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा. कट ऑफ जो है वंस अगेन ये प्री डिसाइडेड नहीं है. जस्ट डे बिफोर यस्टरडे वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा अपेयर हो रही हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर आपने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट करीब वाला ही कट ऑफ प्रिडिक्ट करा था, तो इस साल का भी कट ऑफ बता दें.
तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि बेटा मैंने तो पेपर के बाद बताया था, और कट ऑफ जो है आप कोई भी बंदा अगर आपको होगा, चाहे जितना एक्सपीरियंस टीचर होगा, वो एक एजुकेटेड गेस दे सकता है। कोई भी बंदा आपको एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या होगा। एक्यूरेटली कट ऑफ खाली आईबी ही बताएगा, दैट टू बेटा ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट। सो यू ओनली गेट टू हियर अबाउट द कट ऑफ ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट बेटा। और आपके जो पेपर का जो पीडीएफ आता है, जो रिजल्ट का पीडीएफ आता है, उसमें ही आपका कट ऑफ लिखा होता है। तो कोई भी बंदा अगर आपको ये कह रहा है कि इस मतलब कट ऑफ ये होगा, क्योंकि इस किस्म की मिथ्स आप बहुत सारी बच्चों से भी सुनेंगे कि इस बार का कट ऑफ मुश्किल हो सकता है, या मैंने ये सुना है या ऐसे सुना है। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ्स जो है एग्जाम्स के करीब सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो कट ऑफ बेटा पहली तो चीज ये है, आप भी अगर कहीं पे ऐसे लोगों को सुने या ऐसे लोगों से मिलें, तो ट्राई एजुकेटिंग देम कि कट ऑफ कभी भी प्री पेपर, इनफैक्ट बिफोर रिजल्ट, कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, टीचर्स एक एजुकेटेड गेस दे सकते हैं, वो भी टेस्ट के बाद, वो भी बच्चों से पूछ के कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है वो डिफिकल्टी लेवल गॉज करते हैं, वो यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस वो बता सकते हैं कि ओके इस रेंज में आएगा। बट नोबडी कैन टेल द कट ऑफ कि व्हाट द कट ऑफ एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी। अब कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है, या आईबी कट ऑफ फिगर आउट कैसे करता है कि कट ऑफ होगा क्या। तो कुछ चीजें हम समझ लेते हैं बेटा कि कट ऑफ जो है इट्स गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो पहले तो कट ऑफ हमारा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स होता है बेटा, परसेंटेज की टर्म्स में नहीं आता है। कट ऑफ दूसरा हमारा फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 33% ही कट ऑफ है, या 66% कट ऑफ है, या 50% कट ऑफ है। कट ऑफ आपका जो है फिक्स नहीं होता। इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। सो इफ द टेस्ट इज रियली डिफिकल्ट, द कट ऑफ इज गोइंग टू बी लो। इफ द टेस्ट इज easy, the cutoff is going to be high. Also, I said it's revealed or announced on the paper. It could be. So if there are a majority of the kids who are performing well on the day of the test, so that means the competition is going to be high. So the cutoff is going to be high as well. And if majority of the kids on the day of the test find the paper difficult, so the cutoff is going to be low. Are we clear? तो कट ऑफ कभी भी हम पेपर से पहले या रिजल्ट से पहले जो है वो बेटा रिजल्ट से पहले नहीं बता सकते। वंस अगेन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा कट ऑफ। अच्छा बेटा नेक्स्ट चीज जिसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि वो हम अपने फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, या प्रायोरिटीज कैसे चूज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फैमिलाइज आवरसेल्फ विद फिलिंग आउट द फॉर्म देयर। देखिए आईबीए लाइक आई सेड कि कट ऑफ फिक्स नहीं होता है, ये हर मर्तबा हर अटेम्प्ट में वेरी कर रहे होते हैं। कभी ये 205 हो जाएगा, कभी ये 252 हो जाएगा, ये 270 तक भी गया है, ये 150s में भी आ जाता है, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी लेवल से वेरी कर रहा होता है। अब आईबीए के दो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम जो है वो बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब एट टाइम्स कभी कभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कट ऑफ भी ऊपर हो जाता है, कभी कभी दोनों के सेम होते हैं। तो आईबी फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है कि यूनिट 16 इंग्लिश, 19 मैथ्स एंड 205 फॉर द बीबीए प्रोग्राम, 16 इंग्लिश, 19 मैथ्स, 200 फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, 16 इंग्लिश 5। और सेकंड, अब एक बच्चा है, उसके 100 इंग्लिश में आ गए, 95 मैथ्स में आ गए, 195 इसका टोटल है। अब उसको जाना था बीबीए में। अब वो क्या करेगा? उसका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो गया है, मैथ्स क्लियर हो गया है, टोटल अपेरेंटली उसका मीट नहीं हो रहा। तो व्हेन ही और शी इज फिलिंग आउट द फॉर्म, तो आपको करना क्या होता है, जो आपकी प्रायोरिटी होती है उसको आपने टॉप मोस्ट में रखना होता है। जैसे आपको बीबीए करना है आईबीए से, तो you'll have to put that here on the priority। ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, फिर ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 2 है, फिर ये प्रायोरिटी नंबर 3 है, फिर ये प्रायोरिटी नंबर 4 है। प्रायोरिटी का क्या मतलब है बेटा? प्रायोरिटी का मतलब है कि आईबी को आप बता रहे हैं कि अगर इसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो आप प्लीज इसमें दे दिएगा, इसमें भी नहीं हुआ तो आप काइंडली मुझे इसके लिए कंसिडर कर लिएगा, और अगर इसमें भी नहीं हुआ तो इसके लिए कंसिडर कर लिएगा। आईबी कहता है अच्छा ठीक है। अब अपेरेंटली एक बच्चा है, उसका बीबीए का टोटल कट ऑफ मीट नहीं हो रहा, तो मनाहिल बेटा अब ये बच्चा क्या करेगा? अब आईबी देखेगा कि वेदर उसकी सेकंड प्रायोरिटी क्या थी। तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी आमना बेटा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है।
तो क्या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का उसका कट ऑफ मीट हो रहा है? अपेरेंटली तो वो भी नहीं हो रहा है। ही इज फेलिंग द टोटल कट ऑफ बाय 5 मार्क्स देयर एज वेल। तो मीर बेटा अब क्या करेंगे हम? अब आईबी चेक करेगा वेदर उस बच्चे ने कोई थर्ड प्रायोरिटी दी थी। तो थर्ड प्रायोरिटी उस बच्चे की सोशल साइंसेस है। सो 60, 90, 195। और यहाँ पे अब आईबी चेक करेगा कि वेदर ही इज एबल टू मीट द इंग्लिश कट ऑफ, यस। मैथ्स कट ऑफ, यस। टोटल कट ऑफ, यस। तो इस बच्चे का सोशल साइंसेस में एडमिशन हो जाएगा बेटा। आर वी क्लियर? नाउ अहमद बेटा, इसके कंपैरिजन में इफ यू वर टू लीव दीज फील्ड्स ब्लैंक, अगर आप ये फील्ड्स ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो अली बेटा अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, आपको बीबीए में जाना था और आपने कहा भाई नहीं मैं तो ये कुछ और नहीं लिख रहा, पर बीबीए में आगे एडमिशन देगा तो कर लूंगा, नहीं तो मैं सीवीएम चला जाऊंगा, जेबिस चला जाऊंगा। पर्टिकुलरली राउंड 1 में अगर आप ये गलती कर रहे हैं, एंड लेट मी से इट वेरी क्लियरली कि ये गलती है। फातिमा बेटा ये मिस्टेक कैसे है? होता ये है जैन बेटा कि अगर मैं ये फील्ड्स ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो clearly IBA would not be considering me for other programs because I did not really let IBA know that IBA should consider me for other programs. मैंने तो IBA को बोला सिर्फ मुझे बीबीए में आना है, बाकी प्रोग्राम्स में नहीं आना। अब इससे दो गलतियां हो गई। एक गलती तो ये हो गई कि आप भूल गए कि ये राउंड 1 है, इसके बाद एक राउंड 2 भी है। तो बेटा राउंड 1 में अपनी सीट सिक्योर करो, चाहे भी जिस भी प्रोग्राम में दे, इसमें दे दे, इसमें दे दे, इसमें दे दे, चुप करके ले लो। राउंड 2 में दोबारा टेस्ट दे दो, कोई मसला नहीं है, जिस प्रोग्राम में जाना है उसमें चले जाना। आर वी क्लियर? अच्छा, अगर सिनेरियो ये राउंड 2 में हो जाए, अस्यूम करें कि हम मार्च में हैं, मार्च में ये डिस्कशन हो रही है हमारी, अप्रैल में हो रही है, जैसे या इसके बाद हमारी मई में ये डिस्कशन हो रही है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, यही करेंगे हम, यही सारी चीजें यहाँ पे भी पुट करेंगे, और जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन मिलेगा हम ले लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? आप कहेंगे सर करना तो बीए में था, आप मुझे कुछ और क्यों करवा रहे हैं? मैं कुछ और नहीं करवा रहा बेटा आपको, मैं कह रहा हूँ कि बीए सोशल साइंसेस में और बीबीए में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, या इनफैक्ट किसी और प्रोग्राम में भी आपके बहुत सारे कोर्सेज सिमिलर हैं, तो आप पढ़ लो फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही पढ़ लो। फिर क्या होगा? दिसंबर आ जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी अगस्त से, दिसंबर आ गया, आपका सेमेस्टर 1 हो गया, दिसंबर आ गया, अब नेक्स्ट फरवरी में, फरवरी 2025 में आपका राउंड 1 आएगा दोबारा आईबीए का, तो यू हैव टू रीअपियर, और आपको आईबीए का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और बीबीए का कट ऑफ मीट करना पड़ेगा दोबारा से आईबीए में रहते हुए। अगर आपने आईबीए का बीबीए का कट ऑफ मीट कर दिया तो आप इंटरनली आईबीए का प्रोग्राम स्विच कर लेंगे और आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा बेटा। आर वी क्लियर? आपकी यूनिवर्सिटी भी आईबीए रही, आपका ईयर भी वेस्ट नहीं हुआ। इसमें एक चीज और आएगी, कुछ आपकी होंगी कोर्सेज की डेफिशिएंसीज, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि सोशल साइंसेज में होते हैं और बीबीए में नहीं होते, वो आपको रिपीट करने पड़ेंगे। आर वी क्लियर बेटा? कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि सोशल साइंसेज में है और बीबीए में नहीं है, वो आपने पढ़ लिए होंगे तो वो आपको रिपीट करने पड़ेंगे। आर वी क्लियर बेटा? तो ये एक इसका बेटा फायदा है। दूसरी चीज भी आपके पास ये होती है कि आपके पास एड ड्रॉप वीक होता है, और ये खाली आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऐसे हो रहा होता है। सेकेंड सेमेस्टर में जब एड ड्रॉप वीक आता है या जब आपकी एनरोलमेंट ओपन होती है, तो आप ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में अपने बीबीए के कोर्सेज में ही एनरोल हो चुके होंगे ऑलरेडी, तो सारा प्रॉब्लम खाली फर्स्ट सेमेस्टर का ही होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके जो कोर्सेज सिमिलर हैं वो तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं होंगे उनको हम आईबी की टर्म्स में या आईबी के अंदर हम उनको कहते हैं डेफिशिएंसी, वो कोर्सेज आपको रिपीट करने पड़ेंगे बेटा। तो वो आप कर लें, और वो आप समर सेमेस्टर में एक्स्ट्रा लेके कैचअप भी कर लें ताकि आप टाइम से ग्रेजुएट हो जाएं। इससे आपका ईयर बेस नहीं होता है बेटा, क्योंकि बच्चे गलती ये करते हैं सर बीबी में ही लेना था, बीबी में पुट करूंगा, मैं दूसरे ऑप्शन यहाँ पे नहीं पुट करूंगा, तो ये गलती होती है बेटा। तो राउंड 1 में तो बिल्कुल भी रूम नहीं है कि हम ये वाली मिस्टेक यहाँ पे करें। अच्छा बेटा, ऑन 18th of February we'll be appearing, or we will be having tests of these programs: BBA, ACF, Social Sciences and BS Economics। Social Sciences के अंदर बेटा आपके पास फर्दर जो है 4 मेजर्स हैं: साइक, पॉलिटिकल साइंसेज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड हिस्ट्री। सो अगर किसी को साइकोलॉजी पढ़नी है तो वो भी इस मेजर में जाएगा, किसी को पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो वो भी यहाँ आएगा, किसी को मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है तो वो भी यहाँ आएगा, किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो वो भी यहाँ आएगा बेटा। BS इकोनॉमिक्स जो है इट्स ऑल
टुगेदर डिफरेंट मेजर, और सोशल साइंसेज कुछ बच्चे समझते हैं कि दोनों सेम है, तो ये सेम नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट डिग्रीज बेटा। इसके अलावा हमारे पास दो तीन और प्रोग्राम्स हैं, बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बीएस इको एंड मैथ्स, और आईबी का जो सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है दैट्स व्हाट वी कॉल बीएस इन मैथमेटिक्स। सो वंस अगेन ये बाय मेजर है बीएस इको एंड मैथ्स, और ये बीएस मैथ्स इट्स अ डिफरेंट मेजर, सो इसको भी कंफ्यूज मत करिएगा। बीएस इको एंड मैथ एक और सेपरेट डिग्री है, बीएस मैथमेटिक्स एक अलग डिग्री है। तो आईबी अंडर ग्रेड के लिए 7 डिग्रीज अभी तक ऑफर कर रहा है। 4 डिग्रीज ये रही बेटा, बीबीए, एसीएफ, सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स, और बाकी 3 डिग्रीज बेटा ये रही हमारे पास, और ये सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है अभी आईबी का। तो इन 4 प्रोग्राम्स का बेटा सेम डे के ऊपर सेम टेस्ट होता है। इट इजंट लाइक कि आपके 4 अलग टेस्ट होंगे, आप सेम टेस्ट दे रहे होते हो, सेम ही टेस्ट होता है और एक ही टेस्ट होता है। इन 3 का बेटा आपका मार्च में टेस्ट होगा, और ये सेम टेस्ट होता है बेटा। But till here, if you've got any question, तो please do let me know. जैन बेटा क्लियर है? मीर बेटा आपको क्लियर है? अहमद बेटा आपको क्लियर है? अच्छा बेटा, फॉर दोज़ हू टेकिंग द क्लास ऑनलाइन, अगर आपको क्लियर है तो आप इधर अनम्यूट कर दें, या आप जो है ग्रुप के ऊपर आप एडिट होंगे तो आप वहां पे बता देंगे इट्स क्लियर टू यू। हमने बेटा देखिए सोशल साइंसेज में होता ये है कि पहले तो आप सारे बच्चे जो ना सिमिलर कोर्सेज ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट खुद से किसी एक मेजर की तरफ ज्यादा हो रहता है। एज इन आप पहले साइकोलॉजी के कोर्सेज भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंसेज भी पढ़ेंगे, मीडिया कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे शुरू में। और जब आपको इलेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं तो आप देखते हैं कि मुझे किस में स्पेशलाइज करना है, और फिर और ये सारी आईबी में ऐसा नहीं है, बाकी जगहों के ऊपर भी ऐसा है। देखिए साइकोलॉजी, अब कोई 48 कोर्सेज हम साइकोलॉजी के ऊपर नहीं पढ़ा सकते किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास जो है बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली साइकोलॉजी के नहीं होंगे। अब ऑफ कोर्स एक प्रोग्राम के अंदर, एक अंडर ग्रेड के अंदर 48 कोर्सेज होते हैं बेटा, तो 48 कोर्सेज आपके पास साइकोलॉजी के नहीं होंगे हर यूनिवर्सिटी में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि सोशल साइंसेज या साइकोलॉजी ऑफर करती है बेटा। तो आप पहले तो ये सारी कोर्सेज भी पढ़ते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी आप पढ़ेंगे, और फिर जब आपके इलेक्टिव्स या स्पेशलाइजेशन का टाइम आता है तो फिर आप साइकोलॉजी के इलेक्टिव्स पिक करते हैं ताकि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो साइकोलॉजी में हो जाए। अब एक और भी चीज़ है कि आप जब सोशल साइंसेस पढ़ते हैं और मेजर साइकोलॉजी में करते हैं तो आपके पास दूसरी जॉब्स के भी ऑप्शन होते हैं। अब अगर आप बीएस इन साइकोलॉजी कर लेते हैं, आप पढ़ तो सेम चीज रहे होते हैं लेकिन आपकी डिग्री पे बीएस साइकोलॉजी लिखा रहा होता है। तो होता ये है कि जब आप फिर जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं तो लोग यही समझते हैं कि यार आपके मेजर तो खाली साइकोलॉजी में है, तो आपको फिर दूसरी जॉब्स के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो बीएस सोशल साइंसेज वाले आपके पास, क्योंकि ये काफी अच्छा मेजर है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो ये एनजीओज में बहुत चाहिए लोग, ये लोग मीडिया के अंदर बहुत चाहिए, ये लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में ये लोग बहुत चाहिए, अब ये लोग स्टार्टअप्स में बहुत चाहिए, कॉपी राइटिंग वगैरह। इवन दो कॉपी राइटिंग आपको लगेगा कि ये तो सर इसके लिए तो मैं कोई कोर्स कर लूँ, लेकिन ये मैं थोड़ी सी अच्छी कॉपी राइटिंग कह रहा हूँ, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जो कॉपी राइटर्स होते हैं, बहुत बड़ी जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं। तो डिपेंड करता है कि बेटा आप कहाँ पे फिर जॉब करना चाह रहे हो स्पेसिफिकली। लेकिन बीएस सोशल साइंसेज अगर आपने साइकोलॉजी में करा है, स्पेसिफिकली अगर आपने अपने मेजर्स करा है, तो आपके पास एक तो साइकोलॉजी की जॉब्स का भी ऑप्शन होता है, लेकिन क्योंकि आपने बाकी कोर्सेज भी पढ़े होते हैं और आपकी डिग्री बीएस सोशल साइंसेज होती है, तो यू हैव मोर जॉब ऑप्शंस बेटा। और फिर साइकोलॉजी की भी जॉब्स का आपके पास एक ऑप्शन रहता है, और बाकी डिसिप्लिन में भी जहाँ पे सोशल साइंसेज के ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं बेटा, उनका भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। आमना बेटा क्लियर है आपको? आपने पूछा था बेटा। अच्छा बेटा, बिफोर वी प्रोसीड विद द टेस्ट, or we before we start off any discussion specific related to the test only,
तो पहले तो चीज हमें अपने आप को जो फैमराइज करने की जरूरत है बेटा, वो ये है कि देयर इज नो फिक्स पैटर्न फॉर आईबीएस टेस्ट। आईबी के टेस्ट का कोई एक फिक्स पैटर्न है ही नहीं। So there has never been a fixed pattern for IBS test, and that's something that makes this test very unique and very different. For SCT, we do have a pattern. For IBS test, we do have a pattern. But for IBS test, there has never been a pattern. कभी भी IBS के टेस्ट को कोई पैटर्न रहा ही नहीं है, पास में भी नहीं रहा, अभी भी नहीं है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि राउंड वन में आपके पास इंग्लिश में फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के आ जाएं, 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आ जाएं, 10 क्वेश्चंस ग्रामर के आ जाएं। खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ऐसा आ गया तो ये बहुत आसान पेपर होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब नेक्स्ट पेपर में बिल्कुल जो राउंड 2 होगा उसमें ऐसा हो सकता है कि यू कुड हैव 20 क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, 15 क्वेश्चंस ऑन पोएम्स, 10 क्वेश्चंस ऑन क्लोज टेस्ट। तो देयर हैज नेवर बीन अ फिक्स पेपर पैटर्न फॉर आईबीएस टेस्ट बेटा। तो आईबी के लिए आपको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी होती है। होलिस्टिक का मतलब ये है कि वो बहुत एक बर्ड आई व्यू लेके आपको उसमें प्रिपरेशन करनी होती है और सारी चीजों को अकाउंट फॉर करके प्रिपेयर करना होता है बेटा। तो आईबीए का टेस्ट का हमारे पास कभी भी ना कोई पैटर्न था ना है। तो आपको बहुत सारी चीजें जो कि आईबीए ने हिस्टोरिकली टेस्ट करी हैं या जो आईबीए पॉसिबली टेस्ट कर सकता है या जो दूसरे टेस्ट में आती हैं सच एस एससीटी या जीआरई या जीमैट, हमें वो सब कुछ करना पड़ता है आईबीए के टेस्ट के अंदर बेटा। तो बेटा जो मैं बच्चों को ब्रॉडली समझाता हूँ कि आईबी के टेस्ट कोई सिलेबस नहीं है, एक बहुत ब्रॉड सा करिकुलम है, वो भी डिफाइंड नहीं है। उसमें भी आईबीए बहुत जो है नई नई चीजें देता रहता है। तो बस आईबी ये कह देता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो एक 12th ग्रेड या एक हाई स्कूल स्टूडेंट की इंग्लिश की जितनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ों को बहुत वेग रखता है। अब यहाँ पे एक और बात भी जो मैं कर देता हूँ कि बच्चे ऑफन ये पूछ रहे होते हैं कि सर लेकिन आईबी का तो एक पेपर पैटर्न या कुछ सिलेबस वगैरह आईबी की वेबसाइट पे है, तो बेटा वो सारा आउटडेटेड है। आईबी जब कभी दिल करता है 5 साल बाद तो अपनी वेबसाइट अपडेट कर देता है, लेकिन सिलेबस आईबी का अपडेट नहीं हो रहा। उस सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आईबी के टेस्ट में आती रहती हैं, लेकिन उस सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये एक सैडली आईबी के टेस्ट पे थोड़ा सा मसला है बेटा। अच्छा बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करें कोर्स को 16 दिसंबर। विल बी डन विद दैट कोर्स बाय 8 और 10 फेब। हो सकता है हम जल्दी भी कर लें, लेकिन एक सेफ एस्टिमेट है बेटा हमारे पास। फिर हम बाकी टाइम जो है वो जो यहाँ पे फुल एंड टेस्ट होते हैं और पास पेपर्स वगैरह करने में अटेम्प्ट करते हैं। कि आईबी के लिए बहुत सारे जो आपके पास सीरियस इश्यूज आएंगे वो टाइम मैनेजमेंट के आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में टाइम बहुत लग रहा होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो उसके लिए आपके लिए हम लोग एक तो रेगुलर प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे जो है आपके टेस्ट की डेट तक 18 तक जो है हम लोग यहाँ पे पास पेपर्स या एफएलटीज हम कहते हैं फुल एंड टेस्ट, तो वो हम अटेम्प्ट करते रहते हैं। हमने थोड़ा सा इन हाउस बनाए हुए हैं डेलिबरेटली। आईबी के टेस्ट पेपर से हमने उनको मुश्किल रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा चैलेंज फील हो और आपको पता चले कि आपको जो है स्ट्रेस में आपको रह के कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। थोड़ी सी आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही होती है, आपको एंजाइटी कंट्रोल करना आता है। You get to learn which questions you'll have to attempt first, which questions you'll have to attempt towards the end, how exactly you'll have to budget the time, how exactly you'll have to pace yourself accordingly in the paper। तो वो सारी चीजें हम जो है वो इधर इस जगह पे सीख रहे होते हैं। वो इससे पहले भी सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर वो डेडिकेटेडली वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स द फुल एंड टेस्ट ओनली, बिकॉज आपका भी जो पेपर ही है वो एक फुल एंड टेस्ट ही होता है। तो आइडिया ये होता है कि आप एक अच्छे 10 से 12 पेपर यहाँ पे दे के जाएं और घर पे जो है पास पेपर्स करके जाएं। यहाँ पे फुल एंड टेस्ट करें, घर पे पास पेपर्स करें। सो योर टेस्ट और योर एक्चुअल टेस्ट विल जस्ट बी अनदर पेपर फॉर यू देन, क्योंकि यू गेट सो यूज्ड टू टेकिंग द फुल एंड टेस्ट कि एक आप पे एक बेस भी बन चुकी होती है, एक आपका मोड भी बन चुका होता है, एक आपकी आदत भी बन चुकी होती है। तो आपको पता होता है कि फुल एंड टेस्ट को मुझे कैसे डील करना है। फुल एंड टेस्ट का मतलब ये होता है कि 3 आवर्स का या 2.5 आवर्स का एक आपका फुल स्किल टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें मैथ्स भी है, और फिर वो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक पेपर या एक टॉपिक के हम क्वेश्चंस नहीं दे रहे होते, उसमें मैथ्स में जितने भी आपके पॉसिबल टॉपिक्स वगैरह हो सकते हैं वो सारी चीजें हम उसमें टेस्ट कर रहे होते हैं बेटा।
अच्छा बेटा, यहाँ तक आप लोग चीजें क्लियर हैं तो प्लीज मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। जो आमना बेटा, आई बिलीव मैंने इसका भी आंसर करा है ऑलरेडी, कि इफ यू गो फॉर बैचलर्स तो उसमें प्रॉब्लम, देखो, आप दोनों चीजें कर सकती हो, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन हो जाती है बेटा। अगर फिर यही है कि अगर आपको स्पेसिफिकली एक साइकोलॉजी में जाना है, साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, तो फिर तो एक चीज समझ में आती है बेटा। लेकिन इफ यू वांट टू कीप अदर ऑप्शंस ओपन, और आप चाहती हैं कि नहीं, हो सकता है अभी मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी इंटरेस्ट करेगी, यूनिवर्सिटी जाके मुझे शायद इंटरेस्ट ना करे, बहुत बोरिंग हो जाए, ठीक है, या ये वैसा ना हो, क्योंकि ये 70% होते हैं लोगों के साथ ये केस होता है कि वो कुछ समझ रहे होते हैं इस डिग्री में होगा ये, लेकिन इवेंचुअली व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग दैट डिग्री, सो दे डोंट लाइक इट एज मच। तो मैं इसलिए कहूंगा कि पहले आप साइकोलॉजी के कोर्सेज ले लें नॉर्मल जो है यूनिवर्सिटी में, और फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको मेजर साइकोलॉजी में ही करना है या आपको किसी और चीज में करना है। लेकिन अगर आप शुरू से ही साइकोलॉजी कर लोगी तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको 4 साल डिग्री पढ़नी भी है, और फिर उसमें आगे जॉब आपको करनी हो ना करनी हो, या उसको करियर वाइज परसू करना हो ना करना हो, तो उसमें भी फिर आप बैक ट्रैक नहीं हो सकते, उसको आप अंडू नहीं कर सकते बेटा, तो फिर तो वो करना ही है। तो आई रिकमेंड कि आप बच्चे सोशल साइंसेस पे जाएं, और फिर यूनिवर्सिटी में जब एक दो कोर्सेज साइकोलॉजी के पढ़ लें, फिर देखें कि वेदर इट्स actually interesting them or not, whether they have any kind of interest in that or not. And if they do, so then of course they should pursue a major in that, फिर आप मास्टर साइकोलॉजी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल बीएस सोशल साइंसेस कर लें, और बीएस सोशल साइंसेस करके आप मेजर इसके अंदर साइकोलॉजी में कर लें, और फिर आप मास्टर साइकोलॉजी में कर लें, या मास्टर स्किल क्लिनिकल साइकोलॉजी या किसी और साइकोलॉजी में आप कर लें, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से ही बैचलर्स ही साइकोलॉजी के अंदर करें, तो फिर अब हमने नैरो डाउन कर दिया, अब फिर मास्टर्स किसी और चीज में नहीं हो सकता, फिर वो बैचलर जब आपका साइकोलॉजी में है तो फिर एसेंशियली अब आपकी डिग्री साइकोलॉजी वाली होगी। आमना बेटा, इज इट क्लियर? अच्छा बेटा, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि हमारे पास दो काइंड के एडमिशन आईबी के अंदर। एक तो होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि यू गॉट इन द एडमिशन, ऑल यू हैव टू डू इज वेट फॉर अ फी चलान, पे योर फी एंड दैट इज इट। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन। नो क्वेश्चंस आस्क वाली एक चीज होती है। अब आपका एडमिशन हो गया, दैट इज इट, इसमें और कोई चीज नहीं है। हाँ, इट इज कंडीशनल टू योर ग्रेड्स, ग्रेड्स के ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। एक और एडमिशन जो होता है उसको हम कहते हैं थ्रू इंटरव्यूज। थ्रू इंटरव्यू का मतलब ये है कि नाउ यू विल हैव टू सिट फॉर द इंटरव्यू एज वेल, सो देयर इज अनदर लेयर अभी, और देयर इज अनदर स्टेप हियर दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो अभी आपको इंटरव्यू भी देना है और इंटरव्यू भी क्लियर करना है। जस्ट बाय द वे, आईबी के अंदर इंटरव्यू के भी पासिंग मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू का एक अलग कट ऑफ होता है। एक तो टेस्ट का कट ऑफ होता है दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अर्लियर, एक इंटरव्यू का भी कट ऑफ होता है। और आईबी के अंदर राउंड वन में इंटरव्यू से जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा, क्योंकि एट टाइम्स इंटरव्यू का कट ऑफ जो है वो 87% या 90% तक भी होता है। अब 87 या 90% का मतलब क्या है? 87 या 90% का लेट से मतलब है कि if there are two interviewers, one interviewer gives you 8 out of 10, the other interviewer gives you 9 out of 10, तो भी आपके 17 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 20, आपका कट ऑफ हो जाएगा 85%। मैं आपको जरा कुछ डिस्प्ले करके दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं बेटा। अभी लास्ट ईयर का अगर आप चेक करें बेटा, ये लिखा हुआ है फाइनल टेस्ट फॉल 2023 राउंड वन। इसमें हुआ क्या, बच्चों का कट ऑफ जो है बीबीए का, that is 87 percentage. Now what do we mean by 87 percentage? Once again, that basically means that you have, of course, have to get 87 percentage at least in the interview in order to clear the interview. So मैं आपको जो example दे रहा था वो ये है कि there are two interviewers. If one interviewer gives you 8 out of 10, and let's just say if the other one gives you 9 out of 10, so even then
even then beta your score will be 17 out of 20, and 17 out of 20 basically translates to 85%, और तो भी आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा। even though आपने almost अच्छा इंटरव्यू दिया है, 8 out of 10 is good, 9 out of 10 is even good, so left almost have to get 9 out of 10 from both the interviews if there are two interviews, if there are three तो फिर तीनों से 9 out of 10 मुझे चाहिए होंगे, तो जाके मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा भाई। अब ऐसा होता क्यों है आईबी के इंटरव्यू थोड़े से मुश्किल या हिस्टोरिकली मुश्किल होते क्यों हैं? क्योंकि आईबी के इंटरव्यूज यूजुअली तो स्टार्ट वो आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन से ही होते हैं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, एंड देन दे आस्क यू कि यार आपको स्पेसिफिकली आईबी क्यों आना है, तो उसमें ये वाला जवाब नहीं होगा जो कि आप लोग ने अभी मुझे दिया, या जो एक बच्ची ने अभी, बेटा मैंने ऑनलाइन बच्चों से भी पूछा था लेकिन आप लोग ने भी जवाब उसका आंसर शायद आई बिलीव मैं मेरे को नहीं मिला है। तो उसमें आपको अपनी इंटेंट बतानी होती है कि व्हाई एग्जैक्टली यू विश टू कम टू आईबी, जिसमें आप बताते हैं क्योंकि आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, या आपका एलुमनाई का नेटवर्क बहुत अच्छा है, या मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी होगी जब मैं आऊंगा, या आईबी मुझे इक्विप करेगा विद द राइट सेट ऑफ स्किल सेट दैट आई नीड इन ऑर्डर टू एक्सेल इन माय करियर। उसके बहुत सारे आंसर्स हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिस होती है, इंटरव्यू की क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए लेकिन हमें आंसर्स को रिहर्स करना पड़ता है। अच्छा फिर वो आपसे पूछते हैं, अच्छा व्हाई एग्जैक्टली डू यू विश टू परस्यू बीबीए और एसीए फॉर सोशल साइंसेज, तो इसमें भी आपको उनको बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, तो उसमें फिर काउंटर क्वेश्चन आपको करते हैं कि यार आपके पास तो सारे सब्जेक्ट ही साइंसेज वाले हैं, आपने फिजिक्स केम मैथ्स पढ़ा है, तो आपको बीबीए में क्यों आना है? आपको तो डोंट यू थिंक यू शुड रादर गो टू एन इंजीनियरिंग स्कूल एंड नॉट कम टू आईबीए? आपको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई क्यों ऐसा है, एक स्टोरी बीफ करनी पड़ती है। ये सारी चीजें, ये सारी डिस्कशन या इन सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग के कौन से आंसर करना है, कौन सी चीज को कैसे कनेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे काउंटर करना है, ये हम इंटरव्यू की क्लासेस में, इंटरव्यू के सेशन में सीखते हैं। तो अभी मैं उसके आंसर्स नहीं बता रहा, खाली आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं कि यार अच्छा ठीक है, लेकिन आप लेट्स से आप अकाउंटिंग ई को बीएस दे के गए ए लेवल्स में, तो आपसे पूछते हैं यार आपके पास तो बिजनेस में भी सी है और एएस के अंदर, और अकाउंट बिजनेस में आपका बी है, अकाउंटिंग में सी है, तो आपको लगता है कि आपको आईबी आना चाहिए, फिर आपको इसकी भी जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो इस तरीके से फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर वो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, फिर जो आपकी हॉबीज है उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं हमेशा एक स्पोर्ट्स वाली एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कहीं मेरी पहले भी कोई, अगर आपने कहीं यूट्यूब वगैरह पे भी कोई लेक्चर अटेंड करा हो, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल दैट्स समहाउ स्टक देयर इन माय माइंड, क्योंकि बच्चे के साथ हुआ था। बच्चे से उन्होंने ये पूछा था कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तो बच्चे ने जवाब दिया था फुटबॉल, और फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन करा था कि आपका फेवरेट क्लब कौन सा है, उसने जवाब दे दिया चेल्सी। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताएं कि चेल्सी के ओनर ने अपनी वेल्थ किन किन बिजनेसेस से अर्न करी है। तो अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ फॉर्मल चैट विद यू, और वो बस आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, फिर आपको बताना भी है, क्योंकि अगर आपके पास इसका डेटा नहीं है तो दैट मींस यू आर मेकिंग अप द आंसर्स। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर सारी चीजें बताओ। अगर स्नूकर में इंटरेस्ट है तो स्नूकर की चैंपियनशिप्स कहाँ हो रही हैं, करंट चैंपियन कौन है, पाकिस्तान से कौन है, इंटरनेशनल कौन है। टेनिस है तो टेनिस में फिर आपके पास पीएचडी होना चाहिए। फेडरर ने कितने टाइटल जीते हैं, नडाल ने कितने जीते हैं, कब हुआ था, विंबलडन कब हुआ था, ये कब हुआ था, तो फिर ये डेटा अच्छा हो। तो ये सारी चीजें टेस्ट के रिजल्ट और इंटरव्यू की डेट के बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, विच इज वाई सेट के फॉर्म थोड़ा लेट फिल करना है। आर वी क्लियर बेटा? लेकिन अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर अब क्या करें, इंटरव्यू तो टेस्ट से ज्यादा मुश्किल लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं? तो उसकी उसकी बात की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन डिस्प्ले करके बात कर रहा हूँ ताकि हम क्लैरिटी थोड़ी सी यहाँ पे रहे। देखिए स्टूडेंट्स बेटा, जैन बेटा हु क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू लास्ट ईयर एंड राउंड में, they needed 92 in English, 92 in maths, and 212 as their total. Or these people had to sit for the interview. However, the ones Mir beta, Fatma beta, the ones who got in directly, जिनका direct admission हुआ, उन्होंने क्या करा था बेटा? बेटा जिनका direct admission हुआ था, उनको भी 90 चाहिए थे, 92 चाहिए थे बेटा in English, 92 in maths, और उनको total चाहिए था 220।
220 और वहां पे 212, 220 और 212 में बेटा खाली 2 पॉइंट्स, सॉरी 2 MCQs का डिफरेंस है, 8 मार्क्स का डिफरेंस है। आर वी क्लियर बेटा? तो डायरेक्ट एडमिशन और इंटरव्यू में जो डिफरेंस था वो खाली 2 पॉइंट्स या 2 मार्क्स का था बेटा। तो अगर आपको आईबी के लिए जाना है बेटा, तो इट्स एडवाइजेबल दैट यू ट्राई गेटिंग इन डायरेक्टली। अगर इतनी मेहनत आप कर ही रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एफर्ट इसमें लग रही होती है, टाइम लग रहा होता है, तो कोशिश करो कि आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाओ बेटा। डायरेक्ट एडमिशन में अच्छा फायदा ये होता है कि आप सिक्योर होते हो, आपको इंटरव्यू ऑफ कोर्स नहीं देना होता। अब एक और भी चीज अगर मैं इसको आपको क्लियर कर दूं, तो देखो, हर वो बच्चा जिसका स्कोर 220 या 220 से प्लस था, फातिमा बेटा, आमना बेटा, तो उसका एडमिशन डायरेक्टली हो गया। मनाइल बेटा, अहमद मीर बेटा, एनीबडी हु हैड स्कोर बिटवीन 212 एंड 216, अली बेटा, उसका इंटरव्यू था। एनीबडी हु हैड स्कोर between, or let's just say anybody who had scored had a score of 208 or less simply failed the test बेटा। तो फेल करने में और डायरेक्ट एडमिशन में खाली 3 MCQs का डिफरेंस है। फेल करने में और इंटरव्यू में 1 MCQ का डिफरेंस, इंटरव्यू में और डायरेक्ट एडमिशन में 2 MCQs का डिफरेंस है। अब यहां से अगर इस वाले एंड पे देख लोगे तो 1 MCQ का डिफरेंस है। 212 वाला भी इंटरव्यू दे रहा है, 216 वाला भी इंटरव्यू दे रहा है। 220 वाला चैलेंज में उसका हो गया, उसके घर पे जो सब मुबारकबाद के फोन आ रहे हैं, मिठाई विठाई का सीन चल रहा है, वो उसके चिलिंग्स है भाई, अब वो उसके मजे हैं। अब उसको ग्रेड्स की टेंशन है कि बस ग्रेड्स आ जाएं, एडमिशन तो हो गया। इस बच्चे को नई स्ट्रेस है। अब इसके दूसरे मैसेजेस आ रहे हैं, सर अब ये इंटरव्यू क्या सीन है, अभी कैसे होगा, ठीक है। इसके साथ एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है मेरी, इस बच्चे के साथ एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब ये कह रहे सर वो साथ उर्दू भी दे दूं, समहाउ बस ग्रेड्स आ जाए ना। सर मैं उर्दू भी दे रहा हूँ, बस अब तो ये हो गया, मैं उर्दू भी दे रहा हूँ, ठीक है सर। ये एक अलग माहौल है, यहाँ पे एक अलग माहौल है, ये 3 अलग अलग माहौल है भाई। तो हमें थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसमें और इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। when you guys are working too hard to get here, so how about you guys work a little harder and try getting in directly बेटा। क्योंकि देखो, जब if you guys were to take IBS test today ना, अगर आप आज जाके IBS के टेस्ट हो, तो most of you will be standing somewhere between 128, 140, 160। यहाँ से यहाँ तक आना मुश्किल है, इट्स अ लॉन्ग जंप। यहाँ तक आना, यहाँ से यहाँ तक आना ना इतना मुश्किल नहीं है। इट विल ओनली टेक यू गाइस अ कपल ऑफ 2 weeks। 2 weeks का मतलब है कि थोड़ी सी चेंजेस, कुछ वोकैबलरी जिसमें आप स्लैक ऑफ कर गए उसको कर लो, कोई मैथ्स का टॉपिक जो आपका वीक रह गया उसके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सको वो कर लो। वो टॉपिक जिससे आपको डर लगता है, आपको पसंद नहीं है, उसको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो। हर चीज पॉसिबल। Like I said कि you guys have to be ready for all sort of paper patterns, क्योंकि पेपर पैटर्न डिफाइंड नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आई भी ऐसी चीज दे देगी तो आपसे सॉल्व नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आईबी को अपनी सीट्स को कोई वेकेंट नहीं रखना। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ऐसा सिनेरियो आ भी जाता है कि आईबी ने पेपर ऐसे दे दिया जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे दानिया बेटा? अगर पेपर ऐसे दे दिए जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, फिर कट ऑफ नीचे होगा बहुत। कट ऑफ हो सकता है 50s में आ जाए, 60s में आ जाए, टोटल कट ऑफ हो सकता है, टोटल कट ऑफ 90s में आ जाए, इंडिविजुअल कट ऑफ 20s में हो, 30s में हो, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन आईबी ऐसा नहीं करेगा कि पेपर कोई ऐसा बना दे कि बच्चे से सॉल्व ही ना हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है बेटा आज तक। अब ये मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये एक एग्जाम्पल को अब थोड़े टाइम बाद, ये राउंड 1 में, अब 2024 में इस एग्जाम्पल को भी 4 साल हो जाएंगे। एक अल्फा कॉलेज का हमारा बच्चा था, अली नाम था उसका भी, तो ये कट ऑफ था जो नीडेड था, उस बच्चे का ये स्कोर आ गया था बेटा। सॉरी, दिस वाज द कट ऑफ, माय बैड, फॉर द डायरेक्ट एडमिशन, दिस वाज फॉर द इंटरव्यू। उस बच्चे का स्कोर ये आया था, तो ही हैड टू सिट फॉर द इंटरव्यू
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एमसीक्यू। अगर एक एमसीक्यू सही होता तो उसका डायरेक्ट एडमिशन था। सीबीएम से ग्रेजुएट होने वाला है वो बच्चा, ठीक है। इंटरव्यू दिया, फेल हो गया। अच्छा बच्चा था, वोकल भी था, लेकिन फॉर सम रीजन इंटरव्यू फेल हो गया बेटा। अच्छा बेटा, कमिंग टू द ग्रेड्स पार्ट, क्योंकि दैट दिस पार्ट रियली कंफ्यूजेस अ लॉट ऑफ द पीपल। पहले तो हम समझ लेते हैं ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेटा फॉर IB we need 2Bs 1C for the BBA program, 1B 2C for the BS programs. We need 65% for the BBA अगर आप इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स आ रहे हैं, 60% फॉर ऑल द BS programs। अब सर अगर मेरे पास ये ग्रेड्स नहीं है तो क्या मैं टेस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ। पहले तो ये बात हम समझ लेते हैं कि ये ग्रेड्स टेस्ट में बैठने के लिए नहीं चाहिए, ये ग्रेड्स एडमिशन के लिए चाहिए। तो आपका वो ड्राइवर ड्राइवर आपका आपका गार्ड, फॉर एग्जांपल आपके घर का चौकीदार, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ टेस्ट दे सकते हैं। आपके सिबलिंग्स जो कि अभी ओ लेवल्स में है, मैट्रिकुलेशन में है, वो भी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में बैठने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आर वी क्लियर बेटा? एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। जब एडमिशन हो जाएगा, अगस्त में यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जब इंटरमीडिएट का और ए लेवल्स का रिजल्ट आ चुका होगा, तब उसके भी 2 वीक्स बाद IB कहता है लाओ अब अपना रिजल्ट सबमिट करो। आर वी क्लियर? तब ये ग्रेड्स होने चाहिए, उससे पहले नहीं। अब केस नंबर 2 सर मैं तो एक्सेल्स दे रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे सारी पेपर, तीनों पेपर एक्सलेटेड है, मैं क्या करूँ? आप तो भी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि IB थोड़ी पूछ रहा है अभी। IB बिल्कुल नहीं पूछ रहा। आर वी क्लियर? IB अगर पूछ भी लेते कि एस के ग्रेड्स क्या थे, तो अभी बोल देना कि भाई अभी तो पेपर ही नहीं हुआ मेरा। वहां पे ऑप्शन होता है चूज करने का बेटा। आर वी क्लियर? ये बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, सर मेरी तो परसेंटेज ही नहीं है तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो आपकी परसेंटेज सेकेंड ईयर की या A2 की, पहली तो बात है कि मैटर कर रही है, वो भी तब मैटर कर रही है जब दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हों। तो IB को भी पता है कि कब आगा खान बोर्ड का रिजल्ट आएगा, कब सिंध बोर्ड का आएगा, कब फेडरल बोर्ड का आएगा, और कब CIS का आएगा। और उसके भी बहुत बाद, 2-3 वीक्स बाद, वो आपको कहते हैं कि अब आप प्लीज अपना रिजल्ट सबमिट करते हैं बेटा। आर वी क्लियर? अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर मेरा भाई ये रिजल्ट मीट नहीं हुआ और मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? तो आपका एडमिशन रिवोक हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका एडमिशन टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब है कंडीशनल टू योर ग्रेड। आर वी क्लियर? हाँ, अब ये ग्रेड्स आ गया तो एडमिशन आपका कंफर्म हो गया। आर वी क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज डू आस्क, फिर हम आगे चलते हैं। आमना बेटा इज क्लियर, दानिया फातिमा बेटा, मनाहिल बेटा, मेहरानी बेटा इज क्लियर। ये समझ आ रहा है बेटा आपको? अगर ऐसा है कि 2 Bs आ गए और एक D आ गया, तो उसमें फिर क्या करना होगा? यूबीस 1D अगर आ गया बेटा, जी सर। देखो बेटा, डी तो ना यहाँ पे एक्सेप्टेबल है ना यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, डी नहीं होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड जो एक्सेप्टेबल है वो है C। आर वी क्लियर? अब आप कहोगे सर मैं तो BBA में था। Sir, do they give us an option to like retake वो D grade? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। देखो, लम्स रीटेक का ऑप्शन देता है। लम्स कहेगा कि अच्छा अक्टूबर नवंबर 2024 में रीटेक दे देना। IB देता नहीं था लास्ट ईयर, जो कुछ आप समझें कि पेपर हमारे इसलिए कैंसिल हो रहे थे क्योंकि कुछ इस्लामाबाद में और कराची में जो है प्रोटेस्ट वगैरह, और इमरान खान की अरेस्ट, और उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इसकी वजह से इस मरतबा उन्होंने ऑप्शन दिया था। अब ये इलेक्शन ईयर है, फरवरी में इलेक्शन अपेरेंटली शायद हो जाए। अगर उससे बाद गॉड फॉरबिड कोई अनरेस्ट होता है कंट्री के अंदर और आपके पेपर कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, तो IB ऑप्शन दे सकता है, वरना IB यूजुअली नहीं देता। कोविड में दिया था और लास्ट ईयर दिया था। अब आप थे इनरोल्ड BBA में, लेकिन आपके ग्रेड आ गए 1B 2C, अब क्या करेंगे? अब IB कहेगा बेटा IB में रहना है तो प्रोग्राम स्विच कर लो। आर वी क्लियर बेटा? IB कहेगा BBA से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में चले जाओ, तो चले जाना, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे की जॉब्स पे लग रहे हैं।
कराची में, अनलेस कि कोई बहुत स्पेसिफिक ऐसा सेक्टर हो जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला चाहिए और बीबीए वाला नहीं चाहिए, या बीबीए वाला चाहिए और एसी वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग वाले बच्चे मार्केटिंग की जॉब्स भी कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले इधर आए हुए हैं, तो बड़ा अजीब सा सीन बन रहा है आजकल। लेकिन क्योंकि मेजर कोर्सेज जो है लोगों के वो ज़्यादातर सेम है, मेजोरिटी कोर्सेज सेम है, तो उसकी वजह से इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बी एट एनी कॉस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या आईबीए रीटेक का ऑप्शन देगा? तो अभी तक अनाउंस नहीं है, लम्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम देंगे। आर बी क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, ये इस बात की इम्पोर्टेंस जो है ना बड़ी ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा किस्म के फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग एडेड होते हैं। फिर वही बात है, जहाँ 4 लोग जमा होते हैं वही अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हैं। तो पहले तो चीज यहाँ पे इस चीज को डीबंक कर लो, इस myth को कि टेस्ट प्रिडिक्टेबल नहीं है। सर मेरे कजन ने दिया था, वो तो कह रहा था ये हुआ था। बेटा आपके कजन ने दिया था, कब दिया था, कौन से ईयर में दिया था, वो कजन ऑलरेडी पढ़ने में कैसा था, उसकी ऑलरेडी इंग्लिश का स्किल क्या था, मैथ्स का स्किल क्या था। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप अपने आप को अपने कजन से कंपेयर करो। सर मेरा कजन कह रहा है इतनी वोकैबलरी क्यों कर रहे हो, इतनी मैथ्स की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। सर मेरे कजन ने तो जो है D1 D2 D3 D4 से प्रैक्टिस करके दे दिया था, या ओ लेवल्स के पेपर 1 से पढ़ के ही उसने दे दिया था। तो बेटा ये सिचुएशंस पास में कुछ पेपर्स पैटर्न के लिए, पास का मतलब है 7 8 10 साल पहले शायद ये ट्रू हो, हर साल अब द पेपर इज गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर डिफिकल्ट बेटा। तो टेस्ट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है, एंड आईबीए हैज दिस एलिमेंट ऑफ सरप्राइजिंग द स्टूडेंट्स इन एवरी अटेम्प्ट। तो बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट ले लेते हैं प्रीवियस पेपर पैटर्न से, वो बिल्कुल स्विच हो जाते हैं दूसरे पेपर पैटर्न की तरफ। टेस्ट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। मिथ नंबर 2 है कि सर मैं तो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, या सर मैंने तो अभी एम कैट का टेस्ट दिया था जो कि 3 बार हो चुका है, पता नहीं क्या सीन है, और मेरा वो भी सही नहीं हुआ। तो अब मैं, घर वाले बोल रहे हैं कि अब आप आई पे चले जाओ, छोड़ दो मेडिकल। तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इस तरह हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, जिन्होंने डॉक्टर बनना होता है पूरी लाइफ, बट समहाउ दे डिसाइड टू गो टू आईबीए। लेकिन वो तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि वो एम कैट के लिए पढ़ रहे होते हैं, उनको एक एक वो ऑलरेडी रिदम में होते हैं पढ़ने के, जस्ट दैट वो दूसरी चीज पढ़ने लग जाते हैं और वो भी कर लेते हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका ओ लेवल्स में मैथ्स में क्या ग्रेड था, या मेट्रिकुलेशन में आपकी क्या क्या ग्रेड आया था, क्या परसेंटेज आई थी मैथ्स में, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। इन द सेम ब्रेथ आई वुड लाइक टू से कि आई हैव सीन किड्स विद एन ए स्टार इन फर्दर मैथ्स फेलिंग दिस टेस्ट, क्योंकि वो एक अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारे जाते हैं कि सर ये तो कोई मसला नहीं है, हम तो बड़े सुकून से कर लेंगे। तो ये भी केस है, तो ये भी, इसको भी इसी क्लास में इसी जुमले में सुनो ताकि आप दोनों चीजों को साथ सुनो। मिथ नंबर 3 है सर कि पढ़ना ही पड़ता, मतलब मैंने तो सुना है इतना नहीं पढ़ना पड़ता। तो बेटा इसके लिए एक अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। आप ये समझो कि आप इंटरमीडिएट में हो, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको 85% लाने के लिए जितना, या 85% से ऊपर लाने के लिए जितना पढ़ना पड़ेगा उतना पढ़ना पड़ता है। अगर आप ए लेवल से हैं तो आप समझे कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केम मैथ्स, तीनों में ए स्टार चाहिए, वैसे पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि पढ़ना नहीं पड़ता, तो पढ़ना पड़ता है बेटा इस टेस्ट के लिए। तो आपको थोड़ा सा, अगेन वही बात है कि खाली आप एक टेस्ट प्रिपरेशन में सेंटर में एनरोल हो जाओ, या हम आपको ये बोल के एनरोल कर दें कि आ जाओ बस, तो वो आपके साथ गलत हो जाएगा। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, और पढ़ने के बाद एडमिशन के बाद लाइफ जितनी सेट है वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है, और वो आईबीए के मजे और एक आईबीए का ब्रांड नेम वो एक अलग डिस्कशन है बेटा। थोड़ा सा बेटा एक हम हिस्टोरिकली अगर हम बात कर लें, क्योंकि लाइक ऐसे कुछ बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। तो देखिए एक टाइम था जब ये टेस्ट थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता था, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते थे, वोकैबुलरी के अंदर आसान सी ग्रामर थी, ऐसे नहीं था, और इजी टॉपिक्स आते थे मैथ्स में। फिर 2009 से लेके में जो है आईबी ने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया, मैथ्स में और टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए।
फिर 2016 में आईबी जो है वो जो लास्ट वाला एसईटी था उसकी तरफ लीन ऑन होना शुरू हो गया, जो डिजिटल एसईटी से पहले था। 2018 से आईबी ने पोम्स भी इंट्रोड्यूस कर दी, मैथ्स में और टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए और नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी। और वहीं पे ऐसे भी दोबारा खत्म हो गया, तो ऐसे 2009 में आया और फिर अब खत्म भी हो गया। 2020 ऑनवर्ड्स अब थोड़ा सा अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं 2020 ऑनवर्ड्स। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बेटा, वो हम उसमें ये भी कर रहे होते हैं, 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 ये भी कर रहे होते हैं। और एक और चीज होती थी हमारे पास एसईटी में, एक तो होता है नॉर्मल एसईटी जिसको हम एसईटी 1 कहते हैं, इनफैक्ट अब इसको हम एसईटी कहते हैं, लेकिन जब और भी एसईटी होते थे हमारे पास या एसईटी सब्जेक्ट टेस्ट होते थे, तो इस वाले को हम एसईटी 1 और इसको हम एसईटी 2 कहते थे। तो एसईटी 2 जो है बेसिकली वो सब्जेक्ट टेस्ट होते थे कि अगर आपको एसईटी हिस्ट्री में देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में देना है, मैथ्स में देना है, केमिस्ट्री में देना है, फिजिक्स में देना है, ये देखने के लिए कि आप स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स में कितने अच्छे हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी, अभी भी हैं, जो कि ये कहती थी कि यार आप इंग्लिश मैथ्स का एसईटी ना बताएं, आप हमें ये बताएं कि आपकी फिजिक्स की नॉलेज कितनी है, केमिस्ट्री की नॉलेज कितनी है। तो बच्चे सब्जेक्ट टेस्ट देते थे। तो हम अपनी क्लासेस में बेटा एसईटी सब्जेक्ट टेस्ट के क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास दो लेवल्स की बुक्स होती हैं, मैथ्स लेवल 1, मैथ्स लेवल 2, तो हम उनको भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि हमारी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी प्रैक्टिस हो। तो आइडिया बस यही होता है कि व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश और मैथ्स वी विश टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ताकि जिस किस्म का भी पेपर पैटर्न आ जाए, जो भी वो कॉम्बिनेशन बनाए क्वेश्चंस का, जिस टॉपिक से भी वो जितने क्वेश्चंस दें हमें वो आते हैं, बस यही आइडिया होता है, यही गोल होता है। और इसी के लिए आईबी के टेस्ट के लिए एक बात आप हमेशा याद रखना कि इट्स बेटर एंड इट्स एडवाइजेबल टू ओवर प्रैक्टिस। ओवर प्रैक्टिस कर लो फायदा है, प्रैक्टिस रिस्क है, पूरा कराची कर रहा है, अंडर प्रैक्टिस ऑलरेडी फेल। ओवर प्रैक्टिस करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक बात मैंने ऊपर स्किप करी, इसलिए करी ताकि शुरू में बताता तो इट वुड नॉट हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू यू गाइस। ये मैंने खुद पढ़ा था 2018 में। अच्छा, पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी जाके इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे ही कह दूंगा तो आपको शायद बिलीव ना हो। तो जो इनकी ओरिएंटेशन थी, तो जो आईबी के डीन थे डॉक्टर फारूक, उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखें 4200 ऑफ द पीपल अप्लाइड इन द बीबीए प्रोग्राम ओनली। सिर्फ बीबीए में इतने बच्चों ने अप्लाई करा था, ये इतने बच्चों की प्रेफरेंस बीबीए थी, और उसमें से इतने बच्चों का एडमिशन हुआ था। दिस 400 just by the way is made up of the kids who took एसईटी अगस्त आपके टाइम में। अगर आपकी टाइम में भी हम बात कर लें ना, तब एसईटी अगस्त नहीं होता था ये, क्योंकि 2018 की एक, मैं फेसबुक की पोस्ट की बात कर रहा हूँ, तब एसईटी अगस्त नहीं होता था। लेकिन लेट्स से हम आ जाते हैं आपकी टाइम की बात करें, तो इस 400 में खाली आईबी के टेस्ट टेकर्स नहीं है, इसमें एसईटी वाले बच्चे भी हैं। तो आपकी टाइम में भी वो बच्चे ऑलरेडी हैं, हमारे पास भी हैं, जिन्होंने एसईटी अगस्त से आईबी की सीट सिक्योर कर ली है, एसईटी अक्टूबर से कर ली है, कल एसईटी दिसंबर का रिजल्ट आया तो उससे कर ली। अब आप लोग लेफ्ट ओवर सीट्स के लिए कंपीट कर रहे हो। आर वी क्लियर? तो दोस्त लेफ्ट ओवर सीट्स वुड बी कितनी, लेट्स सी दैट। आइडिया लेते हैं कि कितनी सीट्स होंगी। देखें, जैन बेटा जरा टेंशन चाहिए आपकी। देखिए लिखा हुआ बेटा, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर बीबीए प्रोग्राम। अगर हम आईबी के अपने टेस्ट से देखें तो 116 ऑफ द पीपल, 116 किड्स गॉट इन थ्रू द टेस्ट। जिन बच्चों का टेस्ट एग्जाम हुआ है एसईटी के थ्रू, वो कितने हैं? 117 से शुरू हो रहे हैं और 139 पे वो खत्म हो गए। तो 22 बच्चों का टेस्ट एग्जाम हुआ बेटा, सॉरी 23 का। तो 116 और 23 बेटा, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे। जिस बात में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 116 का बेटा टेस्ट क्लियर हुआ है,
23 का आईबी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। अब आप आगे आ जाओ। तो ये वो बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है थ्रू टेस्ट। खाली 8 बच्चों का आईबी के अंदर इंटरव्यू क्लियर हुआ। कितने में से, ये भी हम देख लेते हैं बेटा। 53 बच्चों ने आईबी का इंटरव्यू दिया था थ्रू टेस्ट। 8 बच्चों का हुआ। एससीटी वाले 113 बच्चों ने बीबीए का इंटरव्यू दिया था, 48 का हुआ। मैं बार बार विंडोज को स्विच नहीं कर रहा पीडीएफ से इसके ऊपर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा और डिस्कशन काफी लंबी है। और कुछ बच्चों का थोड़ा सा वेट कर रहे थे, तो क्लास थोड़ी सी टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई। तो 113 बच्चे एससीटी वाले थे जिन्होंने आईबी का इंटरव्यू दिया था। 48 ऑफ देम क्लियर्ड द इंटरव्यू। 53 ऑफ द किड्स हु टूक द टेस्ट had to sit for the interview and only 8 of them cleared it. अब ये 53 कहाँ से मिला मुझे, मैं दिखा देता हूँ ताकि आप घर पे ये एनालिसिस खुद भी कर लें। अब देख लें बेटा, ये बीबीए वाले बच्चे हैं। ये 53 लिखा हुआ है। इन सब बच्चों के इंटरव्यूज स्केड्यूल हैं। उसके बाद एससीटी वाले स्टार्ट हो जाते हैं। 14, 10, 13, 80, 12, 80 ये सब बच्चे इंटरव्यू वाले हैं। तो 53 बच्चों का इंटरव्यू था। तो 53 में से पास 8 हुए। कैसे पता चला मुझे कि 8 हुए? वंस अगेन मैं दूसरी पीडीएफ पे आ गया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थ्रू इंटरव्यू बीबीए प्रोग्राम। और ये 8 बच्चे हैं जिनके पास हुए इंटरव्यूज। उसके बाद एससीटी वाले स्टार्ट हो गए बेटा। तो जैन बेटा, 53 में से 8 बच्चों के इंटरव्यूज क्लियर हुए, बाकी 45 के इंटरव्यूज फेल हो गए। बाकी 45 के इंटरव्यूज फेल हो गए। कैसे पता जैन बेटा कि वो फेल हो गए? देख लेते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग को टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स बीबीए इंटरव्यू। ये तो पहले आईबी के अपने टेस्ट वाले आ गए, और फिर ये दूसरे प्रोग्राम्स के आ जाएंगे बेटा। तो ये सारी उन बच्चों की लिस्ट आ रही है आपके पास स्क्रीन के ऊपर। आपको घर पे अगर देखना हो बेटा डिटेल में, जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू उनके क्लियर नहीं हुए बेटा। फेलियर वाले बच्चे अलग हैं बेटा। दूसरे प्रोग्राम्स के भी अगर हम देख लें बेटा, तो 77 बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हुआ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। 27 बच्चे ने आईबी का टेस्ट क्लियर करके एसीएफ का इंटरव्यू दिया, 13 का क्लियर हुआ। 18 बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हुआ एसीएफ के अंदर, और 85 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, 50 का इंटरव्यू क्लियर हुआ। 25 बच्चों का टेस्ट क्लियर हो गया सोशल साइंसेस का। 93 बच्चों ने सोशल साइंसेस का टेस्ट क्लियर करा, लेकिन 17 का इंटरव्यू पास हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। और वो बाकी कितने बनते हैं अगर आप चेक कर लें, तो वो 76 बच्चों ने इंटरव्यू फेल कर दिया। सो मैं खाली एक डिस्कशन जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि इफ यू आर गोइंग फॉर आईबीए एट ऑल, जो कि एक अच्छी बात है, तो गो फॉर द डायरेक्ट एडमिशन बेटा। डायरेक्ट एडमिशन को ही टारगेट करो। और डायरेक्ट एडमिशन राउंड 1 में लेना ज्यादा आसान है। अब अहमद मीर बेटा, ये वाली बात क्या है कि राउंड 1 में ही क्यों आसान है सर, राउंड 2 में क्या प्रॉब्लम है, या राउंड 2 में हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, या राउंड 2 में प्रॉब्लम क्या है, या सर मैं राउंड 2 में अप्लाई ना करूं? अब इस डिस्कशन पे भी मैं आ जाता हूँ। तो जैन बेटा, हम राउंड 2 में हमें जाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो सारे बच्चे जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि दे विल बी वेरी इजीली गेटिंग इनटू लम्स,
उनका रिजल्ट आ चुका होगा अराउंड 2 तक, तो वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे। वो सारे बच्चे जो कि इंटरनेशनली इस वक्त जाना चाहते हैं जैन बेटा, लेकिन फॉर सम रीजन वीजा की प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से, या वो एक्सपेक्ट करेंगे हेल्दी एक डिसेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली, तो वो लोग भी राउंड 2 में आ जाएंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? वो सारी गर्ल्स जिनको परमिशन नहीं मिल रही, जो कि अभी एक्सपेक्ट करी हैं कि पेरेंट्स मान जाएंगे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स कह रहे नहीं कराची में पढ़ो, मैं तो लाहौर भी जाने की इजाजत नहीं दे रहा, वो भी राउंड 2 में आ जाएंगे। तो ये सारे लोग राउंड 2 में आते हैं। तो राउंड 1 में टेस्ट क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान है। एक बहुत रॉन्ग मिथ बनी हुई है बच्चों के बीच में कि सर राउंड 1 का टेस्ट आसान होता है। जी नहीं, राउंड 1 में कंपटीशन, आर वी क्लियर बेटा? राउंड 2 में तो हर कोई दे रहा होता है, क्योंकि तब तो सबको यूनिवर्सिटी जाना है। कुछ लोगों के एग्जाम्स हो गए होते हैं, इंटरमीडिएट वालों के साथ एक और प्रॉब्लम है, राउंड 2 में उनके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। जब से कोविड आया उनके एग्जाम्स जो कि अप्रैल में हो जाते थे, वो अब आ गए हैं जून में, और आपकी डेट्स तो ओवरलैप कर रही हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों का आईबी का टेस्ट आया, अगले दिन भी एग्जाम है, आईबी के टेस्ट से पहले भी एग्जाम चल रहे हैं सेकेंड ईयर के। बचत इसलिए हुई क्योंकि इंटरमीडिएट संडे को कोई एग्जाम नहीं रखता और आईबी का टेस्ट संडे को होता है, ना हो सकता था उस दिन भी कोई एग्जाम होता। तो वो तो बच्चे बेचारे, इसलिए हमारे भी कई बच्चे इसलिए जो उनके उनके रिजल्ट अफेक्ट हुए, तो कह रहे सर हम दोनों चीजों से पढ़े कैसे? और हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी फाइनल है, हम कहते हैं बेटा दोनों को मैनेज करो संभाव। तो अगर आप इंटरमीडिएट से हैं तो फिर तो आपको तो करना ही ऐसा है, ताकि आपका अगर गॉड फॉरबिड ना भी हो तो आपको क्लियर होगा कि यार अच्छा ठीक है, रॉन्ग पढ़ना ऐसा था, तो अब पैरेलल में दोनों चीजों को साथ इस तरह लेके चल सकता हूँ। अगेन अगर आप ए लेवल से भी हो तो यूल बी गेटिंग फ्री बाय 22 ऑफ मई। आईबी की राउंड 2 की भी डेट आ चुकी है 30 जून। तो हमारे पास अगर आप सीरीज बैकग्राउंड से भी, ए लेवल बैकग्राउंड से भी हैं, तो भी आपके पास कोई 30 डेज 35 डेज होंगे। लेकिन उसमें भी एक आपका ईगो का एमसीक्यू होता है जो कि 8 जून को, कभी कभी 10 जून को, कभी 11 जून को हो रहा होता है। और उसके लिए कुछ टीचर्स, अहमद बेटा आपके स्कूल के टीचर्स, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं जहर भाई की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे टीचर की बात कर रहा हूँ, वो क्लासेस रख रहे होते हैं। और जब वो क्लासेस रख रहे हैं तो बच्चे कहते हैं सर हम इको की क्लास लें, हम उसकी क्लास लें, या आपकी क्लासेस लें, अरे हम उसके लिए पढ़ें, वो भी तो पेपर है। तो ये वाली कंफ्यूजन होती है भाई। तो इट्स बेटर कि आप अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, ताकि अगर राउंड 2 में कहानी जाती भी है तो आपको पता तो होगा कि यार मेरी लैकनेस कहाँ थी और उसको कैसे साथ लेके चलना। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि सर, जितनी मेरी डिस्कशन रही है बेटा ओवर द पास्ट डेकेड इंटरमीडिएट वाले बच्चों से, तो बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट के बहुत स्मार्ट बच्चे इसलिए आईबी अप्लाई नहीं करते बिकॉज दे थिंक दिस सिंपली कांट अफोर्ड इट। तो बेटा अगर आप आईबी या लम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये शुड नॉट रियली बी अ बैरियर ऑफ एनी काइंड टू स्टॉप यू गाइस फ्रॉम अप्लाइंग टू आईबी और लम्स, बिकॉज आईबी या लम्स कभी भी आपको मना नहीं करता कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं या आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप अप्लाई ना करें। आप आईबी और लम्स में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपका एडमिशन भी हो सकता है। अप्लाई करना तो अप्लाई तो हर कोई कर सकता है, तो आप खुद बड़ा ईजिली आप पढ़ भी सकते हैं। उसमें बस कंडीशंस ये हैं कि दोनों चीज का एक जो है स्कॉलरशिप का एक फॉर्म होता है, उसको आपको सेपरेटली फिल करना होता है। अब देखिए किसी को भी स्कॉलरशिप देनी है ना, हमें भी कोई बहुत कहता है कि यार सर हम किसी को अगर फी कम भी कर देते हैं ट्यूटर प्लस वाले, अब कोई बच्चा कहता है सर मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी होता है, फिर हम कहते हैं अच्छा बेटा आप जरा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सर आप कुछ दे दें ताकि आपकी बात हमें क्लियर हो जाए कि आप हमें फिर वाटर बिल्स वगैरह या दूसरी चीजें या गैस के बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह दें, ताकि हम उस चीज को टैली तो करें कि वेदर आप डिजर्विंग है, नहीं तो हम किसी और बच्चे को दें। अब आईबी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे होगा, या कोई भी यूनिवर्सिटी वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे होगी, वो कहेंगे अच्छा आप फादर की सैलरी भी अटैच करें, आप बिल्स भी अटैच करें, आप रह कहाँ पे रहे हैं, अच्छा आपके फादर का टैक्स सर्टिफिकेट दिखाएं ताकि हम उसमें चेक करें उनके नेम पे कोई प्रॉपर्टीज या दूसरी चीजें कितनी हैं, आपके घर में अप्लायंसेस कितने हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं, तो वो थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। वो चीजें आपको उनको फर्निश करनी पड़ती हैं और उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको क्या स्कॉलरशिप देनी है। लेकिन देयर आर किड्स हु हैव बीन स्टडीइंग ऑन 100% स्कॉलरशिप्स, 80% स्कॉलरशिप। तो अगर आपके पास कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू, तो कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई करें आईबी और सुकून से पढ़ें,
कोई मसला नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़े होते हैं, हमारे पास इस रूम में ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिन्होंने ये बोला कि सर हम तो सी में भी नहीं जा सकते, हम कहाँ जाएंगे आईपी, और वो ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑलरेडी आईपी से। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब एक टाइम पे ये होता था कि आईपीएफ पहले बोलता था कि मेन कैंपस में जो बच्चे जाएंगे उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, सिटी कैंपस वाले 100% ऑफ द फी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है कि आप कौन से कैंपस जाएं। जो टॉप 50% ऑफ द टेस्ट टेकर्स होते थे वो मेन कैंपस जाते थे। बेशक आपका घर सदर में हो, आप मेन कैंपस जाएंगे ऑल द वे कराची यूनिवर्सिटी, और जो बॉटम 50% है वो सिटी कैंपस जाएंगे। बेशक अब आप बॉटम, अगर आप गुलशन में रहते हैं, आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं, आपके कोई प्रोफेसर हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक घर मिला हुआ है, तो भी आप सिटी कैंपस जाएंगे क्योंकि आप बॉटम 50% है। ये पहले होता था। फिर आईबी ने कहा कि हम टॉप 10% ऑफ द टेस्ट टेकर्स को स्कॉलरशिप देंगे। अब ये भी नहीं होता है और अब ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये भी अगर आप किसी सीनियर फैमिली फ्रेंड से या रिलेटिव से पूछ रहे हो तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अब क्या होता है, अब आईबी कहते हैं टेस्ट दो, अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो ये फॉर्म है, इसको फिल करो, उसके बाद आईबी डिसाइड करेगा कि उसने आपको कितनी स्कॉलरशिप देनी। आर बी क्लियर बेटा? अच्छा, अगेन नीड बेस्ड भी है और आपके पास मेरिट बेस्ड भी है। मेरिट बेस्ड थोड़ी सी बाद में आती है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। नीड बेस्ड आप जो है, नीड बेस्ड एक अलग क्राइटेरिया है। अच्छा, एक और भी चीज बेटा जो बच्चों को नहीं पता होता वो ये कि हम नॉर्मल एडमिशन साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एनटीएचपी अलग चीज होती है, इसको नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम कहते हैं। उसका एक आईबी पहले अपना टेस्ट लेता है, फिर बच्चों को शॉर्ट टेस्ट करता है, फिर आईबी उनको खुद आईबी के टेस्ट की तैयारी कराता है, फिर उनमें से जो बच्चे टेस्ट क्लियर होते हैं करते हैं, आईबी उनकी फीस को खुद फंड करता है। ये एक अलग चीज है। हाँ, अगर आप इस टेस्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारी क्लासेस से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम इसको नहीं कर रहे होते। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन वो कराची में नहीं है, वो क्योंकि ये यूजुअली रिमोट एरियाज या इंटीरियर के बच्चों वगैरह के लिए ज्यादा होता है, तो वो इंस्टीट्यूट्स जो है इंटीरियर सिंध वगैरह में है जो कि एनटीएचपी की प्रिपरेशन कराते हैं। हम लोग तो आईबी के राउंड 1 की और राउंड 2 की प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं बेटा, जो हमारी डिस्कशन हो रही है। अच्छा बेटा, कमिंग टू द टेस्ट, टेस्ट में देखें हमारे पास इंग्लिश मैथ्स तो होता ही है, लेकिन हमने ट्यूटर टेस्ट में उसको थोड़ा सा सब कैटेगराइज करा हुआ है। हम इंग्लिश भी करते हैं, हम मैथ्स भी करते हैं, हम रीडिंग भी करते हैं, हम वोकैबुलरी भी करते हैं, बिकॉज टेस्ट क्लियर करने के लिए ये दो कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट डिकेड में ये दो पोर्शंस ऐसे हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द किड्स ने टेस्ट फेल करा है। आईबीओ को पता है कि बहुत ज्यादा बच्चों का रीडिंग का बैकग्राउंड है ही नहीं, तो आईबी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पैसेजेस दे देता है। एट टाइम्स आईबी बताता भी था कि हम ये यहाँ से दे रहे हैं, तो वो यूआरएल पूरे पूरे कॉपी कर देते थे। ये मैंने इस वाली वेबसाइट से पेस्ट करा है, उठा के दिया है आपको, और इससे ही मैं क्वेश्चन आंसर बना के दे देता है। इसलिए हमें रीडिंग करनी होती है। रीडिंग का मतलब है कि रीडिंग में कुछ नॉवेल्स, कुछ मैगजीन्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रीडिंग की आदत नहीं है। अब रीडिंग का मसला ये है कि हम लोग एकेडमिक रीडिंग भी नहीं कर रहे हैं, नॉन एकेडमिक रीडिंग तो बहुत दूर। हम टीचर्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी इंटरमीडिएट की बुक में क्या लिखा हुआ है या हमारे ए लेवल्स की बुक्स में क्या लिखा हुआ है। हमारा कोई दोस्त भी हमें फेसबुक की पोस्ट में टैग करता है तो हम उसको कह देते हैं यार तुम समरी दे दो, मैं नहीं पढ़ रहा, तो हम रीडिंग से भाग रहे हैं। इस चीज को मनाहिल बेटा, मेहरानी बेटा, दानिया बेटा, और जो चीज बर्ड्स ऑफ कर रही है वो है हमारी स्वाइपिंग की आदत। हमारा, हमने अपना अटेंशन स्पैन बहुत नैरो कर दिया। हमने 3 सेकंड पे हम अटेंशन स्पैन लेकर आ गए। हम एक स्नैप देख रहे हैं या एक रील देख रहे हैं तो पसंद किया नहीं तो हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एक स्नैप देखी, एक दोस्त बर्गर खा रहा है, एक हुंजा में है, एक स्टेयरिंग व्हील है, एक का कुछ और आ रहा है, तो हम 3 सेकंड के लिए कंटेंट से एंगेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है रीडिंग को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। जब हम बच्चों का आजकल रीडिंग करा रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं सर समझ ही नहीं आ रहा, एक सेंटेंस में जा रहा हूँ, जब अगले जाता हूँ तो पीछे वाली चीज को मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसा होगा बिकॉज आपने सोशल मीडिया ओवर यूज कर लिया है। आपने अपने माइंड को जो है ना ट्रेनिंग गलत कर दी है, उसको अपने दोबारा सा अनट्रेन करके दोबारा ट्रेन करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो रीडिंग को एब्जॉर्ब करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप हम रीडिंग नहीं कराएंगे तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको वहां पे पैसेजेस समझ नहीं आएंगे। अब मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि मेन आइडिया के क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, ऑथर की टोन को कैसे बताना है, समरी कैसे देनी है, स्टैंडर्ड आइडिया कैसे फिगर आउट करना है, आपने ये सब तो सीख लिया, लेकिन आपको पैसेज ही समझ नहीं आ रहा। तो पैसेज समझने के लिए पहले घर पे रीडिंग करनी होगी। मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करा सकता इस क्लास में आपके लिए,
ठीक है, मैं 4 महीने का भी जो बैच होता है तो हम ट्रांसलेशन नहीं कराते उसके अंदर कि ट्रांसलेशन ये है पैसेज की। हमें रीडिंग करना आनी चाहिए। हम तो ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना होता है, इसमें क्या की पॉइंट्स देखने होते हैं, इसमें क्या देखना होता है, इसमें क्या देखना होता है, वो हम इन क्लासेस में करते हैं। लेकिन रीडिंग की आदत हमारी होनी चाहिए, तो इसलिए हम रीडिंग मतलब हमारे लिए आईबी के टेस्ट के लिए जो है ना वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। वो कैब्स हम क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब एक लिखा हुआ है, ये एक्चुअल पेपर है 2011 का। लिखा हुआ है टू च्यू ओवर अगेन एज फूड प्रीवियसली swallowed एंड regurgitated। ये मीनिंग है, मीनिंग मुझे इसका करेक्ट वर्ड चूज करना है। आर वी क्लियर? एक बीबीए का पेपर है, इस तरह आपका भी आ सकता है। कॉन्टेम्पचुअस डिसरिगार्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइटफुल अथॉरिटी, ये मीनिंग है इसका वर्ड चूज करना। टू ड्राइव अवे बाय और एज बाय स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसका वर्ड चूज करना है। अब ये 10 वोकैबुलरी वर्ड्स थे। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। अभी मैं आपको इंग्लिश का कोर्स बता दूंगा कि क्या क्या होता है। तो आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है। अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो ये आप कर सकते हो, नहीं आती तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा आपसे बेटा। फिर ये आपके पास 14 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। ऑप्शन को चूज करना है। आप 35th को पढ़ें, इट इज हाईली डिजायरेबल वाले को। अब आप आपको बेटे ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन को चूज करना है। इसमें ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। शुड कब आता है, शुड कब नहीं आता, शुड किन सेंटेंसेस के साथ आता है, इसमें एक वो रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वाले में आपके पंक्चुएशंस के रूल अप्लाई हो रहे हैं। कॉमा कहाँ यूज होता है, सेमी कॉलन कहाँ यूज होता है, विच कहाँ यूज होता है, दिस कहाँ यूज होता है, ये सारे रूल्स के ऊपर बेस होते हैं बेटा। तो ग्रामेटिकल रूल्स भी हमारे लिए आईबी की टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम सेंटेंस करेक्शन कहते हैं। अब बेटा मैं एक नेक्स्ट पेपर आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको 2011 का दिखाया, मैं आपको 12 दिखा रहा हूँ। देखिए 12 का पेपर जो है कंपेयर कंप्लीटली यहाँ पे आमना बेटा डिफरेंट है। इसको जो हम कहते हैं जैन बेटा अहमद, इसको हम कहते हैं बेटा पैराजंबल। पैराजंबल में मतलब ये है कि आपके पास सेंटेंसेस जो है वो शफल्ड हुए हैं एंड यू नीड टू पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर सो दैट दे कुड मेक सेंस। आपको समझ में आ रहा है? ये शफल्ड हुए हैं सेंटेंसेस और आपको इनको एक सेंस, एक ऑर्डर में रखना है ताकि एक सेंस बना सके। अली बेटा आपके पास 3 क्वेश्चंस पैराजंबल के थे, फिर आपके पास बेटा अगेन सेंटेंस करेक्शन। अब देखें अभी तक कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं आया, हालांकि ये बिल्कुल नेक्स्ट ईयर वाला पेपर है। तब आईबीए का एक ही राउंड होता था, 2015 से 2 राउंड होना शुरू हुए। तो जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें एक ही राउंड होता था। फिर ये आगे आपके पास इसको कहते हैं क्लोज पैसेज। देख लें लास्ट ईयर वाले पेपर में कोई क्लोज पैसेज का क्वेश्चन नहीं था, इसको कहते हैं क्लोज पैसेज। मैंने आपको बताया कि आईबी बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ले लेता है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट पेपर दे देता है पिछली अटेम्प्ट से। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? आप समझ रहे होते हैं कि वोकैबुलरी से भरा हुआ पेपर आएगा, एक भी वोकैबुलरी वर्ड नहीं आता। आप समझ रहे होते हैं कि मेरे कजन ने कहा था कि यार बिल्कुल वोकैबुलरी नहीं आई थी मेरी अटेम्प्ट में, तो मेरी अटेम्प्ट में भी नहीं आएगी। आईबीए 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी के दे देता है, तो कुछ भी हो जाता है आईबीए के टेस्ट में। इसको हम क्लोज पैसेज है और बेस्ड ऑन वोकैबुलरी है। आपको पैसेज में वोकैबुलरी बैंक बैंक्स को फिल करना है। वोकैबुलरी आती होगी तो हम अच्छे से कर लेंगे बेटा। तो ये वर्ड्स हैं, आप चेक कर लो। ज्यादा मुश्किल नहीं है कंपैरेटिवली वर्ड, अगर आप चेक करो। consented, nodded, affirm, jiggle, round shape, semicircular, straight, Grecian shape, and so on बेटा। इसको बेटा हम कहते हैं सेंटेंस रिलेशनशिप। आपको 2 सेंटेंसेस की आपस में रिलेशनशिप बतानी है। ये भी लास्ट ईयर वाले पेपर में आपने नहीं देखा। फिर दोबारा आपके पास क्लोज पैसेज है बेटा।
लेकिन ये बेस्ड ऑन ग्रामर है थोड़ा सा। फिर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये पेपर खत्म हो गया बेटा। फिर मैथ्स शुरू हो जाती है आपके पास। फिर हम नेक्स्ट ईयर पेपर पे जाते हैं। अब हम 2013 का पेपर देख रहे हैं बेटा। अब 2013 में पेपर क्लोज पैसेज से स्टार्ट हो रहा है, और वोकैबुलरी है कॉन्फर्मेशन, इन्फरेंसेस, लुडिक्रस, कंजेक्चर, ancestor, descendant, ascended, descended, side, conquer, refer, correspond, unswervingly, circuitously, ultimately, reliably, and so on बेटा। तो ये आपके पास पेपर है। फिर आपके पास सेंटेंस रिलेशनशिप है। फिर दोबारा आपके पास क्लोज पैसेज है बेटा। फिर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और फिर दोबारा पैराजम्बल है, और पेपर आपका खत्म हो जाएगा बेटा। एक और पेपर देख लेते हैं बेटा हम। जी सेम। अब दोबारा आपके पास बेटा वोकैबुलरी है और सेंटेंस कंप्लीशन है। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, बेस्ड ऑन वोकैबुलरी कंप्लीट करना है आपको। वोकैबुलरी वर्ड को यहाँ पे पुट करना है बेटा। फिर आपके पास दोबारा सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस को करेक्ट करना है आपने बेस्ड ऑन ग्रामर। बेटा अजान हुई है, 2 मिनट रुक जाए, अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि हम वोकैब्स और रीडिंग को रेस्ट ऑफ द इंग्लिश से थोड़ा डिफरेंट कंसिडर करते हैं। रीडिंग भी क्योंकि बहुत आती है आईबी के पेपर में, वोकैब्स भी बहुत आती है, और ये दो एक ऐसे पोर्शन है जिनकी वजह से बच्चे ज्यादा इंग्लिश का सेक्शन जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो विच इज व्हाई वी कंसिडर them as separate sections at Tutor Plus। तो हम इसको रेस्ट ऑफ द इंग्लिश से सेपरेटली कंसिडर करते हैं, और इस पे आप देखेंगे कि हमारा एक बड़ा स्पेशल फोकस होगा। हम इससे बहुत ज्यादा आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक तो देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। तो हमें पता है कि आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इंटरमीडिएट एलम साथ है, फिर हमें पता है कि आईपी के टेस्ट में टेस्ट कितने हैं, फिर हमें पता है कि किन चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस करके कम टाइम में ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल फोकस ही वैसे लेके चल रहे होंगे आपका, ताकि हमें पता हो कि यार हमने राउंड वन में स्ट्रेटेजाइज करके कैसे पेपर को अपना निकालना है बेटा। तो रीडिंग और वो कैप्स में थोड़ा सा आपको हमारी तरफ से भी मिलेगा और आपको भी देना पड़ेगा। ये वाली डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिस्कशन थोड़ी देर में आपको समझ में बेटा आएगी। एंड एज इन दिस आप ये कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, आप में से जो ऑनलाइन है आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करके बता दो, इज इट क्लियर टू यू गाइस टिल हियर? कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज पूछ लें। आमना बेटा, इज इट क्लियर टिल हियर? तानिया, फातिमा, मनाइल बेटा, मेहरानी बेटा, इज इट क्लियर? जैन बेटा, क्लियर आपको? अहमद हुसैन, क्लियर आपको? अली बेटा, क्लियर है आपको? अहमद मीर, कोई प्रॉब्लम बेटा?
जी बेटा, देखें, ग्रामेटिकल रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर हम सेंटेंस एरर भी नहीं कर सकते, सेंटेंस करेक्शन भी नहीं कर सकते। सेंटेंस एरर क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, उसमें कोई मिस्टेक होती है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। सेंटेंस करेक्शन, वी जस्ट सॉ कि व्हाट सेंटेंस करेक्शंस आर। सेंटेंस कंप्लीशन भी हमने देखा कि इसमें वोकैबुलरी वर्ड मिसिंग होता है एंड यू आर सपोज्ड टू पुट द करेक्ट वोकैबुलरी। क्लोज पैसेज भी अभी आपने देखा कि पूरा पैसेज होता है और आपको रेलेवेंट वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स या पंक्चुएशंस उसमें पुट करनी पड़ती हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वोकैबुलरी बेस्ड भी होता है, पंक्चुएशन बेस्ड भी होते हैं, ग्रामर बेस्ड भी होते हैं। पैराजम्बल पैसेज भी आपने देखे कि क्या होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई एम श्योर आपको पता होगा। क्रिटिकल रीडिंग थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एडवांस वर्जन एक होता है। आप फॉर नाउ आप यही समझ लें कि इसमें ये चीज़ करनी होती है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करनी होती है। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्रिटिकल रीडिंग में थोड़ा सा आपको एक तो एलिवेटेड पैसेजेस होते हैं और थोड़ा सा ऑथर की टोन्स और दूसरी चीज़ें जिसके जो उनको थोड़ा सा इन्फर करना पड़ता है, जो कि इतनी डायरेक्ट नहीं होती है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है पैसेज से। वो हम क्रिटिकल रीडिंग में करते हैं। फिर एक और चीज़ होती है एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको एविडेंसेस की बेसिस के ऊपर आंसर देना होता है। फिर पोम्स होती हैं और पोम्स बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं हमारे पास। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोम्स को कैसे करना है और पोम्स बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है। ऐसे आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सेंटेंस रिलेशनशिप, अभी आपने देखा कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या रिलेशनशिप बनता है वो आपको बताना है। एनालॉजीज का मतलब है कि बेसिकली एक दूसरे वर्ड्स के साथ ही फिगर आउट करके बतानी है। ये बताने में तो समझ में नहीं आएगा, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए भी हमें थोड़ी सी वोकैबुलरी चाहिए होती है। अच्छा बेटा, फॉर द नेक्स्ट 2 months or so I'm going to largely talk about how to pass this test ना। लेकिन हम पहले ये बात कर लेते हैं कि फेल करने का क्या तरीका है। देखिए, बहुत आसान है फेल करना इस टेस्ट को। इस एरिया में काम ना करो, फेल कर लोगे। ये वाला टाइम ना लगाओ तो भी फेल कर लोगे। और इसको कैजुअली ले लो तो भी फेल कर लोगे। इससे फिर भी चलो हो जाता है, लेकिन ये दो चीजें अगर नहीं करी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि वोकैबलरी अगर आ गई, जो कि 70% ऑफ द टाइम्स आती है, 30% ऑफ द टाइम्स टेस्ट में नहीं आती, लेकिन अगर आ गई तो आपकी इंग्लिश के स्कोर को ये उड़ा देगी, खत्म कर देगी, और आपकी मैथ्स की एफर्ट भी मल्टी बाय जीरो हो जाएगी। बिकॉज आपने मैथ्स में बेशक आपका पीएचडी हो, पूरे मार्क्स आ जाए मैथ्स में, इंग्लिश आपका क्लियर नहीं हुआ इस क्वेश्चन की वजह से, तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो एक अटेम्प्ट थी जब हमने शुरू में, बहुत शुरू में, इतनी वोकैबलरी नहीं करी थी, बहुत शुरू में। और ये मैं बहुत शुरू की मैं बात भी बता रहा हूँ कि इसलिए नहीं करी थी क्योंकि बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो गई थी, आईटी वोकैबलरी दे ही नहीं रहा था। और ये शायद मैं आपसे 2016 की शायद मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने इतनी वोकैबलरी नहीं करी थी, इतनी नहीं करी थी जितनी अब करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को फिर ट्रबल हुई थी क्योंकि वोकैबलरी आ गई थी। टेस्ट तो बच्चों ने क्लियर कर लिए थे फिर भी, क्योंकि उनकी बाकी चीजें अच्छी थी और वोकैबलरी भी याद थी, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रबल हुई थी। तो बेटा वोकैबलरी ज्यादा करनी होती है, तो बस ये आप जरा इस पे ज्यादा का मतलब ये है कि इस पे हमें टाइम लेना पड़ता है थोड़ा सा। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वोकैबलरी पे टाइम देना और बाकी चीज़ों पे टाइम नहीं देना। बाकी चीज़ें करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर है, वोकैबलरी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज एवरी वर्ड इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वर्ड, और इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन टाइप कैसे होगी, तो आप उस किस्म की क्वेश्चन टाइप से डील कर सकते हो। ग्रामर में आपको रूल समझ में आ गया कि कॉमा कहाँ पे यूज हो सकता है, तो आप उसका, अगर आपका रूल याद है तो आप हमेशा उसको करेक्टली प्लेस कर सकते हो। लेकिन वोकैबलरी में हर वर्ड प्रीवियस वर्ड से इज ऑफ कोर्स डिफरेंट वर्ड ना, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है बेटा। बेटा ये बात मैं लाजमी बताता हूँ क्योंकि इस स्टेज पे हमें काउंसलिंग थोड़ी सी करनी होती है। देखो बेटा, एक तो ये कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप पेरेंट्स के कहने पे एडमिशन लेने आ गए, या आप इसलिए एडमिशन ले रहे हो क्योंकि आपके सारे दोस्त इस वक्त आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके दो सिबलिंग्स गए हैं आईबी, आपको जाना है मेडिकल स्कूल या इंजीनियरिंग स्कूल, आप पेरेंट्स के कहने पे आ गए, या आपने बस ले लिया लेकिन आपका दिल नहीं है, तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन is the single and the foremost reason why people fail this test. तो अगर आप हिस्टोरिकली मुझसे पूछें सर एक रीजन बता दें जिसकी वजह से बच्चों का टेस्ट फेल होता है, तो वो ये है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। एंड एज यू आर एजिंग, as you're advancing, the importance and the significance of this reason, or the contribution of this reason behind people's failing this test, is increasing every year of course बेटा। क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रही हैं, हमारे पास दूसरी चीजें बहुत बढ़ रही हैं, हमारे ए लेवल्स के स्कूल्स, खैर वो डिसिप्लिन में नहीं आता, लेकिन पहले स्कूल्स का ऑफ 2 बजे होता था, 3 बजे, अब 4 बजे, अब 5 बजे, अब हम 6 बजे भी जब वीकडे वाले बैच की क्लासेस रख रहे हैं, तो 6 बजे बच्चा डायरेक्ट स्कूल से आ रहा है ए लेवल से, वो भी यूनिफॉर्म में आ रहा है। खैर उसका ताल्लुक डिसिप्लिन से नहीं है, अगेन मैं एक और बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हम टाइम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्ट्रैक्शन सब बहुत बढ़, तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो टेस्ट प्रिपरेशन पे घर पे, आपके लिए बाकी सारी चीजें उतनी ही जरूरी हैं जितनी वो हैं, और बीच में अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो आप प्रिपरेशन कर लोगे, बाकी वरना नहीं करोगे, तो फिर प्रॉब्लम है बेटा। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है जहन बेटा, वंस अगेन अहमद भी बेटा, थ्रू आउट द टेस्ट प्रिपरेशन वी डू हैव अ लॉट मेनी सेटबैक्स। हम बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, फिर भी इंप्रूवमेंट वैसी हमें नहीं दिख रही होती, तो वी टेंड टू गिव अप वेरी अर्ली। हम कहते हैं यार इतना तो पढ़ा था फिर भी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, या आज की क्लास के बाद ये आपने कहा कि नहीं सर ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ और समझ रहा था, आप ऑलरेडी गिव अप कर दिया। या आपका एक टेस्ट अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे ट्यूटर प्लस में, आपने गिव अप कर दिया। तो अगर आपके अंदर परसिवरेंस नहीं है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। बिकॉज देखो एंजाइटी सबको होती है, स्ट्रेस भी सबको होता है, हर किसी को लग रहा होता है कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, स्पेसिफिकली अगर आप वो चीज पहली मर्तबा कर रहे हो, ठीक है। आप जब तक पहली मर्तबा बोर्ड में नहीं बैठे तो आपको पता भी नहीं है कि आप सी से हो सकते हो। जब आप बैठे तो आपको पता चला मैं तो सी से हूँ भाई, मैं तो नहीं कर सकता।
आप पहली मतलब आपने फ्लाइट जब तक नहीं ली अपनी पहले, तो आपको ये भी नहीं पता मैं प्लेन में तय कर सकता या नहीं कर सकता। तो इसी तरह टेस्ट प्रिपरेशन में भी है कि जब तक आप मतलब अपेयर नहीं होगे तो आपको स्ट्रेस होगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। एवरी सिंगल पर्सन हु गेट्स इन देयर इन द आईबीए थिंक्स दैट ही और शी कांट मेक इट। तो ये सबको लग रहा होता है कि हम नहीं कर सकते। तो ये होता है, स्ट्रेस सबको होगा, लेकिन उसकी वजह से गिव अप नहीं करना। क्योंकि परसिवरेंस का मतलब है कि कंसिस्टेंटली चीजों को करते रहना। परसिवरेंस का मतलब है कि फॉलिंग डाउन एंड देन गेटिंग बैक अप ऑन द सेटल। अब अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है भाई। बिकॉज आई हैव सीन किड्स स्टडिंग फॉर अ वीक एंड नॉट स्टडिंग फॉर 2 वीक्स स्ट्रेट। तो सर वो वाला टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था ना, मैंने पढ़ा था तो बस वो फिर दिल नहीं कर रहा था। तो ये अगर है, इतनी जल्दी अगर आप हार मान जाते हो तो ये टेस्ट आपके लिए नहीं। अगर आप हार जल्दी मान जाते हो तो ये टेस्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, मतलब फिर मैं ये नहीं कह रहा कि ट्यूटर प्लस नहीं आओ, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी नहीं जाओ, क्योंकि टेस्ट फिर आपके लिए नहीं है अगर आप हार जल्दी मान लेते हो बेटा। लैक ऑफ स्ट्रेटजी, इसका मतलब है जैन बेटा, दानिया बेटा, थोड़ी सी प्रिपरेशन एक व्हाट्सएप ग्रुप से कर ली, एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया, एक क्वेश्चन दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन इंटरनेट से सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन एक यूट्यूब चैनल से सॉल्व कर लिया। बिल्कुल ही डिस्प्रोपोर्शनेट प्रैक्टिस आपकी चल रही है। आपको नहीं पता कि आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका फायदा क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स यार देखो, स्टूडेंट टीचर रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत अच्छी सी चीजें सुनी है, क्लास में 80 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, 150 बच्चे थे, इस तरह की चीजें हमने बहुत सुनी है। मटेरियल कितना रेलेवेंट है आपका, उसकी डेप्थ कितनी है, फिर फुल एंड टेस्ट आप कितने ले रहे हो और कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप मेक श्योर करो कि कुछ करो ना करो, क्लासेस और एंड रूप से देखा है जो कि जिनका एडमिशन सिर्फ उनकी अटेंडेंस की वजह से हुआ, क्योंकि वो बहुत सारी बातें थी जो कि एंड तक आपसे हम करते रहेंगे और हर दिन एक डिफरेंट बात कर रहे होंगे। वो हमेशा रोज अपनी पसंद की बात या सारी बातों को सुनते थे और बस टेस्ट उनका क्लियर हो गया, इस वक्त आईबीएम में या ग्रेजुएट हो चुके होंगे। एक और भी चीज है बेटा, पासिंग रेशियो या पासिंग परसेंटेज। जहां पे भी जाओ खाली ये मत देखो कि उनके बच्चे कितने पास हो रहे हैं, ये देखो कि वो पढ़ा कितने रहे। क्योंकि आईबी अपनी पासिंग रेशियो जो है वो 2/21 है, जो बात मैंने भी आपको ऊपर बताई कि 4200 लोगों ने बीबीए का टेस्ट अपेयर करा था 2018 में, 400 का पास हुआ। इसका मतलब है कि 21 में से 2 बच्चों का टेस्ट पास हुआ, 19/21 ऑफ द किड्स फेल्ड द टेस्ट or did not get into the BBA program. Let's just say if they did not fail, they did not get into the BBA program. तो ये इस तरह बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स हैं कि हमारे 400 बच्चे पास हो गए, 200 बच्चे पास हो गए, 300 बच्चे पास हो गए, बिल्कुल होते हैं होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई झूठ कह रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि वो पढ़ा कितने हजारों में रहे। तो ये एक ऐसी चीज है कि लोग नहीं बताते, ये बताएंगे तो बस फिर गेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम सबके पास विश है, हम जितने लोग बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, चाहे आप फिजिकल हो या ऑन कैंपस हो या आप ऑनलाइन हो, आपकी ख्वाहिश है आईबीए जाने की, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए और कोशिश करना कि बाकी इंग्रेडिएंट्स होंगे आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। एक है एटीट्यूड, एक है सीरियसनेस। सीरियसनेस का मतलब है अहमद मीर बेटा, दोस्त बोल रहे हैं भाई बॉलिंग के लिए चल रहे हो, आपने कहा नहीं यार अभी नहीं, बॉलिंग ऐसी चीज है 2 महीने बाद हो सकती है, कोई मसला नहीं। आपके कजन से व्हाट्सएप ग्रुप है, कजन ने कहा भाई कराची चल रहे हो, आपने कहा चलो यार कजन के साथ चले जाता हूँ। अब कजन अलग अलग नहीं जाना, भाई एक बार हो गया, आ गया बहुत है। इस बीच में कोशिश करो एक आध बर्थडे किसी की अटेंड कर लो तो बहुत है। बहुत करीबी हो उसकी शादी 2 घंटे के लिए अटेंड कर लो, बहुत है। हर जगह पे जाना, हर जगह अम्मी अब्बू को लेके जाना, आज मार्केट लेके जा रहा हूँ, आज मॉल लेके जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज इम्तियाज लेके जाना है। अगर ये सारी चीजें आपने कॉलेज जाना है, कॉलेज का होमवर्क है, यहाँ का होमवर्क है, यहाँ की क्लासेस है, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट
अप कर देंगे राउंड 2 के लिए, अपनी हरकत होगी भाई। किस चीज से घर वालों को यस बोलना है, किस चीज पे नो बोलना है, और कोई मसला नहीं है, घर चाहिए ऐसी। बहन को लेने के लिए अगर 10 मिनट लगते हैं स्कूल से पिक करने के लिए, ठीक है चले जाओ। बहन को लेने के लिए 2.5 घंटे लग रहे हैं, मैं 2.5 घंटे नहीं निकाल सकता रोज। मेरे लिए इस किस्म का टाइम निकालना रोज इम्पॉसिबल है, तो ये वाली एफर्ट मैं रोज नहीं कर सकता। सर ने मना किया है कि टाइम नहीं मिलेगा। एक मिनट। तो हर वो चीज जो कि हमारा डिस्प्रोपोर्शनेटली टाइम ज्यादा लेके जा रही है, वो अवॉइड करो। सर इसका ब्लॉग तो मैं सबसे पहले, कुछ हो ना हो, मैं इसका ब्लॉग लाजमी देखता हूँ। ठीक है भाई, देख लो अगर 10 मिनट का। नहीं सर, इन सब की स्टोरीज में देखता हूँ, इन सबको मैंने सब्सक्राइब करा हुआ है, इन सबकी सारी चीजें मैं रोज देखता हूँ। इन चीजों को बेटा फिर कट डाउन करो। सारी एप्स के मिला के आवर्स को दिन में 30 मिनट्स पे ला सकते हो तो ठीक है। नहीं तो 5 मिनट के लिए अगर, कि अभी भी कोई स्ट्रीक्स वगैरह हैं तो उसके लिए यूज कर लो भाई। 250-300 रील्स देख के रखते हो तो फिर नहीं, यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की टाइप्स हमारी चेंज हो रही हैं। 4 साल पहले ये डिस्कशन तो मैं करता था, लेकिन इस तरीके से नहीं करता था। अब हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस की काइंड्स चेंज होती जा रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, तो फिर फोन को एयरप्लेन मोड पे डालना सीखो। अगर नहीं कर सकते, वो भी नहीं हो रहा, तो आई मस्ट हैव सीन, पढ़ाई तो बहुत बच्चे होंगे, लेकिन इस तरह 400-500 बच्चे मैंने पढ़ा दिए होंगे जो कि स्मार्टफोन से डाउनग्रेड करके नोकिया वाले फोन्स पे आ जाते हैं इस टाइम के लिए, क्योंकि वो कहते हैं सर नहीं हो रहा था कंट्रोल, बस यही ठीक है। मैंने लोगों को बहुत सारी चीजें और भी करते हुए देखा है। अपने सिबलिंग्स की शादियों को आगे उन्होंने पुश करवा दिया, क्योंकि बेटा, अच्छा बेटा, जो आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इज इट क्लियर? आप लोग को समझ आ रहा है? बिकॉज बीच में जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। फातिमा बेटा, इज इट क्लियर? बेटा द रेस्ट ऑफ यू, मनाइल बेटा, इज इट क्लियर टिल हियर? अच्छा, तो मैंने लोगों को बेटा अपने सिबलिंग्स की शादियों को आगे पुश कराते हुए देखा है, क्योंकि इस बीच में उनकी शादी थी और उनको टाइम देना था शॉपिंग वगैरह का, दूसरी चीजें का। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो अभी फिर मुश्किल हो सकता है। मैं सीधी बात है, देखो यार, मैं गो गेटर वाला एटीट्यूड है मेरा। मैं यहाँ पे सीधा हूँ, पहले टॉपिक से स्टार्ट कर दूं और ये चीजें ना बताऊं, मैं बच्चे खेलने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट ऐसे क्लियर होता है। जिनका क्लियर करवाया है ऐसे ही क्लियर करवाया है। तो ये एटीट्यूड है, ये रास्ता है, इसी पे उनको भी चला है, आपको भी चलना है। अब मैं आपको ये चीजें ना बताऊं और बोलूं नहीं यार आप बस एडमिशन ले लो, बाद में आप मुझे कहो सर मेरी तो बहन की शादी भी है, मैं कहूँ अच्छा चलो पढ़ लो, राउंड 2 भी तो है, तो काम होता नहीं मेरे से भाई। अब वो हर चीज जो डिसप्रोपोर्शनेटली मेरा टाइम लेके जा रही है, वो मेरे लिए फॉर नाउ टॉक्सिक है भाई, सीधी बात है। अब चाहे वो कोई इंसान है या कोई ऐप है, कोई हॉबी है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 घंटे तो मैं प्ले स्टेशन लाजमी खेलता हूँ, बचपन से आदत है। तो देखो यार, अभी नहीं कर सकते, हाँ, चीजों को थोड़ा देखना पड़ेगा। एप्टीट्यूड इज व्हाट यू आर हेयर फॉर। एप्टीट्यूड का उर्दू में मतलब है काबिलियत, और इंग्लिश में इजी मीनिंग है स्किल्स। परसिवरेंस की मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दी बेटा। इफ वी हैव ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, फिर तो सेट है, बस यही चाहिए होता है। अब परसिवरेंस की एक और डेफिनेशन है जो कि आप पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगी बेटा। फातिमा बेटा, मैं भी आंसर कर दूंगा इन सारी चीजों का, मनाइल बेटा एंड में आप रुक जाए जरा। बेटा आईबी का टेस्ट जो है, कराची में
नाहिल बेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, 4 जगहों पे होता है। कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद। अच्छा बेटा, हमारे पास अगर हम आईबी जाना चाहते हैं तो वी आर लेफ्ट विद दीज अटेम्प्ट्स ओनली। राउंड 1 मार्च में R2। मैं फॉर नाउ एसटी रेकमेंड अब मार्च के लिए भी या इवन मई के लिए भी, मई तो वैसे ही सीआईईज होते हैं, मई के लिए भी मैं, मार्च के लिए भी मैं इसलिए नहीं रेकमेंड कर रहा बिकॉज अभी जो जिस सॉफ्टवेयर पे, ब्लू बुक ऐप पे जो हो रहे हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं और कुछ और जो हमारी डिस्कशंस हैं, तो ब्लू बुक की ऐप के अंदर भी कुछ ग्लिचेस हैं। ग्लिचेस का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप एक्चुअल में दे रहे हैं, उसमें एक बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब बच्चों के जो वॉइस नोट पेपर के बाद आ रहे हैं, उसके बाद सुन के लग रहा है कि उनके तो 1600 आ जाएंगे। जो एक्चुअल स्कोर आ रहे हैं वो वैसे नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चे पेपर देने के बाद बोल रहे हैं सर आपने तो मुश्किल पढ़ाया, ये तो बहुत आसान चीजें थी, मैं आपको ऐसे वॉइस नोट सुना सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल स्कोर्स उनकी बातों से मैच नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम ऐसा ही हो रहा है क्योंकि अभी एसएटी लॉन्च या जो इंटरनेशनली जो डिजिटल है वो खाली इंटरनेशनल हुआ है, वो यूएस में भी नहीं है। यूएस ही एक्चुअली एसएटी की एक बड़ी एक्चुअल मार्केट है, तो वहां पे भी चेंजेस रोल आउट होंगे। जब चेंजेस रोल आउट होंगे मार्च 2024 से, तो फिर उनके पास कंप्लेन जाएंगी, फिर उस सॉफ्टवेयर को जरा फिक्स करेंगे। तो अभी मैं एसएटी भाई रेकमेंड नहीं कर रहा, तो या तो ये है या तो ये है। अगेन इसमें जाएंगे हम डायरेक्टली, तो प्रॉब्लम ये है कि जब पहली मर्तबा इसमें दे रहे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम एक एकदम एग्जॉस्टेड बहुत होते हैं ए लेवल्स और इंटरमीडिएट की वजह से, और फिर हम कहते हैं यार इसमें तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो बेटर कि आप पहले राउंड 1 में दो। गॉड फॉरबिड नहीं भी होता तो यू वुड नो कि यार राउंड 2 में पढ़ना है एटलीस्ट कैसे, और आपका एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होगा, तो उसमें कोई आपकी चीज नहीं जा रही, कोई कॉस्ट ऐसी एडिशनल नहीं लग रही है आपकी। तो मेरी एडवाइस यही है कि भाई राउंड 1 में दो, इधर क्लियर हो जाएगा, नहीं भी होगा तो राउंड 2 के लिए हम will be much far ahead of those people who will be starting off their preparation after CIEs। और CIEs के बाद मैं पहले बता रहा हूँ कि 30-35 डेज होते हैं। मैं बार बार CIEs इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट वाले बच्चे तो बेचारे फंसे नहीं हैं, उनके तो अपने ही एग्जाम्स है इंटरमीडिएट के, तो वो तो बेचारे पता नहीं करेंगे कैसे। तो बेटा अगर जाना है तो नाउ इज द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम पहले ही था, जाहिर सी बात है, जो और बेस्ट टाइम था, लेकिन राउंड 1 दो। हमारी बेटा जो क्लास की टाइमिंग्स होंगी, बेटा स्टॉप लिख लो प्लीज टाइमिंग्स को। अच्छा बेटा, एक और चीज जो कि मैं हमेशा बताना पसंद करता हूँ, बेटा जरा आप सब इसको अटेंशन पे करना। देखो, आपका जब मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स कंप्लीट होता है ना बेटा, तो आप बायर होते हो। बायर डिसीजन मेकर होता है। आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन से कॉलेज को डिसाइड जाना है। अब हमारे पास आप जैसे जो भी लोग हैं, आप जिस भी कॉलेज गए, आप अपने ग्रेड्स की बेसिस पे, आप अपनी परसेंटेज की बेसिस पे गए होंगे। आप एक सर्टेन रिजल्ट आया होगा, उस रिजल्ट की बेसिस पे आपने डिसाइड करा होगा कि मुझे कहाँ पे जाना है। अब
अली बेटा, आप जिस भी कॉलेज में गए, आपने डिसाइड करा होगा कि मेरे क्या रिजल्ट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गॉट द एडमिशन बेटा। आप ऐसे किसी के पास 10 स्टार्स हैं वो लेवल्स में, तो आप अकॉर्डिंगली वो वाला कॉलेज चूज करोगे जो आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप बायर होते हो तो आप ही डिसीजन मेकर होते हो, बायर ही डिसीजन मेकर होता है, बायर के ही नखरे होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में बेटा द सिनेरियो इज अ बिट रिवर्स। प्रोफेशनल लाइफ में जो बायर होता है ना, वो एम्प्लॉयर होता है, आप एम्प्लॉय होते हो, आप सेलर होते हो। यहाँ पे सेलर स्कूल था, अब सेलर आप हो। ये बायर है, ये एम्प्लॉयर है, इसने आपको जॉब देनी है, यही बायर है, ये आपकी स्किल्स को बाय कर रहा है, आपके टाइम को बाय कर रहा है। तो उसके ऊपर है कि उसने आपकी सीवी को देखना भी है, उसने आपकी सीवी को अटेंशन पे भी करनी है या नहीं करनी। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कि मैंने आप लोग से पूछा कि बेटा आईबी क्यों जाना है, देखो आईबी हमें जाना होता है एक फैक्टर की वजह से, और उस फैक्टर को हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड। हम चाहे इसको जितना भी शुगर कोट कर लें, डीप डाउन हम सबको एम्प्लॉयबिलिटी की वजह से जानना है। डू वी ऑल अग्री? डू वी ऑल अग्री? हम इसको शुगर कोट बहुत बेस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं सर आईबी को हम इस तरह मक्खन लगा सकते हैं, सर आपकी फैकल्टी बड़ी अच्छी है, आपके पास आपके कोर्सेज अच्छे हैं, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपकी केस स्टडीज अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 10 चीजें आईबी को सुना सकते हैं। डीप डाउन हमारे एक ही रीजन है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड। अब देखो बेटा, इस स्टेज के ऊपर जब आप सेकेंड ईयर में हो या A2 में हो, तो एक माइंड बनाओ कि बेयर मिनिमम मैं आईबी ये लम से नीचे कुछ चूज नहीं करूंगा। इसका फायदा अभी नहीं होता है, इसका फायदा 4 साल बाद ग्रेजुएट होने के होगा। देखो होता यह है कि जितने भी टॉप एम्प्लॉयर्स हैं आपके पास पाकिस्तान में, अगर आपको पाकिस्तान में ही रह के करना है, पढ़ना है, तो वो सबसे पहले जाते हैं इन दो यूनिवर्सिटीज और वो करते हैं करियर ड्राइव्स, ये कैंपस ड्राइव्स भी हम इनको कहते हैं। और वो ऑन कैंपस बच्चों के जो है वो अपने वहां पे बूथ सेटअप करते हैं। जिस तरह आपके एक अगर कॉलेजेस में आपने कभी देखा होगा, एक कोई वीक चल रहा होता है जिसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्कूल्स वाले आ रहे होते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ वीजा कंसल्टेंसी वाले आ रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज वाले आ रहे होते हैं, वो अपना बूथ सेटअप करते हैं, देन यू गो टू देयर बूथ्स एंड देन यू आस्क देम द क्वेश्चंस एंड ऑल। तो इसी तरह यूनिवर्सिटीज में भी होता है, बहुत मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स आते हैं। तो आप ऑन साइट वहां भी पहला इंटरव्यू देते हो, एंड इफ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड तो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अगर इफ दे थिंक कि नहीं अभी नहीं, इस बच्चे को अभी नहीं, लेकिन ये जब थोड़ा और पॉलिश हो जाएगा तो तब तब हम इससे टच में आएंगे। अभी नसीम शाह के भाई खेल नहीं रहे लेकिन पॉलिश हो रहे हैं, ठीक है, पीसीबी पॉलिश कर रहे हैं, अभी खिलाएगा बाद में। अब वो क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं यार अभी नहीं, अभी ये थोड़ा सा अर्ली है, तो आपसे लिंक्डइन के ऊपर वो कहते हैं अच्छा यार आप जरा लिंक्डइन है आपका, और लिंक्डइन आपका बना होता है। लिंक्डइन अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप जरा जाके देखिए कि लिंक्डइन क्या है। तो वो आप अपना लिंक्डइन वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको ऐड कर लेते हैं। यू गेट टू इंटरेक्ट एंड यू गेट टू नेटवर्क विद दीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर्स। और ये लार्जली एचआर के पीपल ही होते हैं, एचआर वाले ही होते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है उनको कि यार यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट, आप 7th 8th सेमेस्टर में हैं, तो आप पहले इंटरव्यू देते हैं, अच्छा हो जाता है तो सेकंड थर्ड इंटरव्यू पर आपका लाइन मैनेजर का इंटरव्यू और आपकी जॉब हो जाती है। अब अभी आप यूनिवर्सिटी नहीं और आप एक ग्रेजुएट हो, आपकी जॉब हो गई है। तो हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? सिंपल सा रीजन है, हमें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करनी है। एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, मैं कोई आपको जिसको उर्दू में कहते हैं, कोई मैं आपको सुनहरे ख्वाब नहीं बेच रहा यहाँ पे, मैं कोई यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई अपना कोर्स नहीं बेच रहा कि मैं आपको कहूँ कि ये लो भाई 4,000 रुपए में कोर्स ले लो, ये कर लो, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है आप मार्केटर बन जाओगे, डॉलर्स आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी के होता ही है। तो नेचुरली एम्प्लॉयर्स, पहले बड़े एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इनकम इन यूनिवर्सिटीज में ही जाते हैं और यहीं से बच्चे अपने उठाते हैं। अच्छा ऐसा होता क्यों है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्योंकि इन लोगों ने यार हिस्टोरिकली ओवर द इयर्स इनकी पूरी पूरी
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने इनके स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो टॉल हैं या फ्लैट हैं, जितने भी लोग हैं वो मेजॉरिटी इन यूनिवर्सिटीज आए हैं. So they have a history of hiring people from these universities, and they actually prefer hiring from these universities क्योंकि उसको पता है, उनको पता होता है कि यार इस बच्चा, ये जो बच्चा है, he has been put through certain kind of pressure. उसने certain किस्म का pressure deal करा हुआ है, उसने certain किस्म के courses पढ़े हुए हैं, उसने strict deadlines meet करी नहीं है, उसने 6-7 8 प्रोजेक्ट्स एक साथ निपटाए हुए हैं, तो उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग भी हुई हुई है, उसकी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हुई हुई है. अब यही अगर एम्प्लॉयर जब चले जाते हैं किसी और यूनिवर्सिटी पे, सेकंड या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी पे, और वो वहां से हायर करते हैं, तो ही और शी इज नॉट एबल टू फिट इन. उसको हो जाता है स्ट्रेस की वजह से फिर वो काम खराब करता है. तो दोबारा फायर करके, दोबारा ऐड देके, दोबारा रीहायर करने में बड़ी प्रैक्टिस लगती है और कॉस्ट लगती है, ट्रेनिंग की कॉस्ट लगती है. अगर वो उन्होंने आपको ट्रेनिंग देनी है तो वो अपने हेडक्वार्टर्स आपको भेजेंगे, आपको होटल में ठहराएंगे, ठीक है, आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो पहले, वैसे रैंडमली नहीं करते. फिर आप आते हैं दोबारा. अगर ये तो एक ट्रेनिंग है, कभी कभी वो आपके पास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, उसमें कुछ हमारे लोकल ट्रेनर्स भी हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी हैं. वो ट्रेनर्स आते हैं, उनको वो फिर होटल्स में रुक रहे होते हैं, उनको ट्रेन कराना, उनको सारी सर्विसेज देना यहाँ पे, और फिर वो आपकी ट्रेनिंग के, वो एक एक ट्रेनिंग के इतने पैसे लेते हैं. तो आसान काम नहीं है हायर करके बंदे को ट्रेन करना. तो दे डू नॉट रियली वांट टू वेस्ट देयर एक्सपेंस ओवर देयर. ऑफ कोर्स वो उसमें ख्याल कर रहे होते हैं कि हम उसी को हायर करें या उसी यूनिवर्सिटी से हायर करें जहाँ से हमने हिस्टोरिकली पास में भी हायर करा है, क्योंकि उनको पता है कि सर्टेन काइंड का बच्चा जो है, ये सर्टेन यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है, ये अच्छे से प्रेशर को, चीजों को हैंडल करता है बेटा. तो नेचुरली मोस्ट एम्प्लॉयर्स जो है वो लीन ऑन हो रहे होते हैं आईबीएल लब्स की तरफ बेटा, और हमें इसीलिए बस जाना है. क्योंकि देखो, मैं एक और बात दोबारा इसको एक और तरीके से भी समझा देता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक कल्चर है, हर घर का भी एक कल्चर है, इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर है. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल पसंद नहीं करती कि आप सीनियर से जाके बहुत इजीली बात करें. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने सीनियर को इमीडिएटली रीच आउट कर सकते हैं, या अपने बॉस के भी बॉसेस को इमीडिएटली रीच आउट कर सकते हैं. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है. तो ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर को चेंज करने के लिए विलिंग नहीं होती हैं. तो उनको पता होता है कि यार बाहर से किसी बंदे को लाएंगे ना, बस ये वही मसला है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने आना में ही शादी करनी है. तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मसला है कि बस यहीं से हमें होना चाहिए. तो एक टाइम था जब डॉन न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब्स आती थी और उन्होंने पर्टिकुलरली लिखा होता था आईबीएलएम्स आईबीएलएम्स. फिर भी सारी जॉब्स माइग्रेट हो गई ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, रोजी के वगैरह के ऊपर, और अब वो चली गई यूनिवर्सिटी के जॉब पोर्टल्स के ऊपर. अहमद, अब साथ हो बेटा, अब वो जॉब पोर्टल्स पे चली गई हैं. तो आप हर, तो जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जॉब पोर्टल्स पे डायरेक्टली जॉब पोर्ट करते हैं, और वो वहीं से आके सीवीज को स्कैन करके वहीं से इंटरव्यू कर लेते हैं. तो वंस अगेन थोड़ी सी बोरिंग डिस्कशन शायद आपके लिए हो गई हो, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बेटा अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाओगे तो सिर्फ आपका ही फायदा है यार. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.